नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज, जेएनआरटीवी, और मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं कहाँ हैं? दोनों नेशन नाउ पर, और हमेशा ही नेशन नाउ आपके साथ और आपके साथ ही रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद। और हमारे सभी दर्शकों को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ व्यूअर्स इन चाइना, नी हाओ टू ऑल ऑफ व्यूअर्स इन जापान, konnichiwa. Abaria Gojambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili, and even where they don't, where there's, even where they speak Sindhabele or Afrikaans or some other We need to do something about the people from China, because we've got a lot of viewership coming from there too. That's right, a hell of a lot of viewers in China, which is very, very surprising, because all the Chinese seem to be very, very interested, especially in the politics of Maharashtra, not just India. So I feel very, very enthused with regard to that. So Pradeep ji, our Chief Minister, Mr. Devendra Fadnavis, went to Sholapur. Yes. Congress, of course, is calling it flood tourism again, but there's a specific reason why we start from there, because as you noticed, Devendra Fadnavis ji said that नुकसान की तस्वीर आप जो हैं वो आपने मोबाइल पर भेज दीजिए, बशर्ते कि आपका मोबाइल आधार कार्ड के साथ लिंक्ड है, तो which is fantastic, I think. But how are they going to determine what is the actual damage which has been done just from a picture? I don't understand. Perhaps they will use that picture to send a team over there for assessment, maybe. And some interim relief also, understanding. Because दोनों mix करना पड़ेगा. One is the documentation, one is the local पंचनामा that they do. Yes. The तहसीलदार's office and. और ये हर साल का ही हो गया ना, अब तो क्या बारिश की वजह से अभी क्या है कि पूरी सोयाबीन की क्रॉप जो है प्रदीप जी पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई है, खत्म हो गई है, और चावल की जो क्रॉप है वो भी खत्म हो गई है, मतलब इट्स गॉन. और ये दैट बाय द वे इज देवेंद्र फडणवीस प्लेन. यू कांट सी फडणवीस. कैन वी हैव इट ऑन फुल फ्रेम, ताकि फडणवीस साहब को भी देख सके? फुल फ्रेम में दिखा दीजिए, ताकि फडणवीस साहब की भी शक्ल दिख सके, प्लीज. And if the mobile has internet by chance, you have the location also where this effect is. Yes. So you can actually put a stamp, a time stamp and a location stamp both. Yes. On the entire thing. But electricity होना चाहिए मोबाइल चलने के लिए. It's a lot of problem. Telling just mobile ठीक है, but then something is not better than nothing. But at least he's gone there, and then he landed also. बिल्कुल. ये सिर्फ हवाई टूरिज्म नहीं था, actually he landed also. He talked to a lot of people, which is not bad at all. और दूसरी चीज़ क्या थी प्रदीप जी, यहाँ सबसे बड़ी बात जो बनती है, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो भी माशाल्लाह हमारे प्रवक्ता जो आएंगे अभी, ठाकुर साहब हैं शायद, संजय ठाकुर जी हैं, और आसिफ फारूकी साहब कांग्रेस से हैं, और हमारे वेरी ओल्ड टाइम सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम शोलापुर, हमारे बड़े अच्छे मित्र शाहजहां अतर साहब भी हमारे साथ होंगे शोलापुर से. तो मतलब आई रियली वुड लाइक टू नो यार लोन वेवर का क्या हो रहा है, क्योंकि एक तो नुकसान हो गया, उसके ऊपर से बैंक का लोन. अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो रिलीफ मिले वो बैंक जाकर के पकड़ ले, भाई पहले इधर दे दो, because it's going to come to the same bank, isn't it? Yes. So what is the guarantee that this relief will not be grabbed by the bank as the interest owed? So this is going to be terrible. And of course here's this man Eknath Shinde. He's really working very hard. He actually went by road and stuff like that and took relief. But only problem that कुछ लोग refuse किए accept करने के लिए, बोले आपके बैग में आपके तस्वीर डाल के आप बैग सप्लाई कर रहे हो, ये थोड़ा ज्यादा हो गया. 2-3 जगह उनका टेम्पो रिफ्यूज कर दिया है. Correct. Which is I don't really know why they are refusing. He's getting relief, और अपनी शक्ल नहीं लगाया तो किसी और की लगाएगा क्या? किसकी लगाएगा वो? आप मुझे बताइए. You want Uddhav Thackeray's face over there? I don't understand. Let's go straight across to our guest. We've got I think we've got Asif Farooqi साहब. I think I saw him. Yes, of course. We got everybody. शाहजहां अतर साहब भी दिख रहे हैं और संजय ठाकुर साहब भी दिख रहे हैं. ठाकुर साहब नमस्कार. नमस्कार सर. वंदे मातरम. वंदे मातरम. संजय ठाकुर साहब. संजय ठाकुर साहब, नवरात्र के तीसरे दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो. आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की. संजय ठाकुर साहब. आज शाहजहां साहब मैं आपके पास आता हूँ 1 मिनट के बाद. शाहजहां अतर साहब आप हमारे साथ बने रहे, मैं आता हूँ आपके पास. जय माता दी, जय माता दी, हर हर महादेव. थैंक यू सर. जय महाराज, बोलिए ना. अच्छा, सबसे पहले हमारे संवाददाता कहना जरा ऊपरा सा लग रहा है मुझको, क्योंकि अब तो बहुत बड़े हो गए. हमारे साथ जब आए थे बहुत पहले 2002 में, तब तो बच्चे थे शाहजहां अतर साहब. अब तो काफी बड़े हो गए. He has become a big man in शोलापुर, in कोल्हापुर में शाहजहां अतर साहब बहुत बड़े आदमी बन गए. शाहजहां साहब आप ये बताएं कि आज माशाल्लाह
देवेंद्र फडणवीस साहब वहां पर थे, तो उन्होंने क्या देखा और क्या किया और वहां पे नुकसान कितना हुआ, पहले हमारे लोगों को बता दें ताकि उसके बाद हम ठीक ठाक सवाल पूछ सकें लोगों से। शाहजहां। सर देखिए, शोलापुर शहर में पिछले 150 साल में जितनी बारिश नहीं हुई उतनी बारिश इस वर्ष में हुई है। 150 सबसे साल देखा में? जाए तो जी जो शोलापुर जिले से सीना नदी बहती है जी उसको ज्यादा से ज्यादा बाढ़ आने के कारण जी करीबन 200 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। और जो दारफर माड़ा यहाँ के जो लोग हैं तो उनकी आज स्थिति बहुत गंभीर है। और आज यही देखने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर आए थे। उन्होंने कुछ गांव का दौरा भी किया है, मगर देखा जाए तो उन्होंने सुकाई के बारे में कोई ठोस फैसला नहीं लिया। सिर्फ इतना ही कहा है कि जो भी किसानों का नुकसान हुआ है तो वो जल्द से जल्द महाराष्ट्र शासन देगी, इतना ही बोला। मगर जो सभी लोगों की मांग थी कि सोलापुर जिला सुखाईग्रस्त डिक्लेयर करो, मगर आज नहीं किया। वैसे देखा जाए तो सोलापुर में भी राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार आए थे, जहाँ पर कई गांव में अभी भी पानी पस रहा है, लोगों को दिक्कत आ रही है, हजारों लोग बेघर हुए हैं। और देखा जाए तो आज शोलापुर से शोलापुर पुणे, शोलापुर बीजापुर, शोलापुर अक्कलकोट, शोलापुर तुळजापुर, ये सब पूरे रास्ते बंद हो गए हैं। जी प्रदीप जी। शाहजहां अख्तर जी, पहले भी ये बहुत सवाल चल रहा था कि सरकार फार्म लोन वेवर, पहले जो कर्ज माफी है उस पर काम कुछ नहीं हो रहा है। शरद पवार साहब ने आवाज उठा दिया, सुप्रिया सुले जी ने बहुत आवाज उठाया, मगर अब उसके बाद ये डबल जो इफेक्ट है फार्मर्स को, इतने जबरदस्त तरीके से रेनफॉल हुआ है। आपने कह रहे 150 साल में सबसे ज्यादा बारिश, तो डबल इफेक्ट लोगों को, जो किसान हो, तो राहत किस उम्मीद क्या है, लोगों का उम्मीद क्या है? किसान माफी भी नहीं, कर्ज माफी का नहीं है, फिर पीक बीमा का नहीं हो रहा है, अब ये ज्यादा तकलीफ हो गया। किस प्रकार से देखते हो? आज जब मुख्यमंत्री महाराष्ट्र तहसील में गए थे तो वहीं के लोगों को कैन वी डू समथिंग अबाउट द ऑडियो प्लीज? जब कड़क धूप होती है तब पानी की मांग करते तो उनको पानी नहीं दिया जाता। और आगे आज तुम सब लोग आए हो तो तुम्हारे आने जाने में जो खर्चा हुआ है उसके बारे में तुम ये किसानों को मदद कर दो, कि आने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा उनके मुंह पर लोगों ने बोल दिया था। यही बात हो गई सब। जी। अब देखा जाए तो शाहजहां साहब, कितने भी लोग हैं जिनका खेती का नुकसान हुआ है, जिनका घरों का नुकसान हुआ है, जिनके स्कूली बच्चों का नुकसान हुआ है। आज देखा जाए तो पिछले 6 महीने से कोई किसान मजदूर को सोलापुर जिले में काम नहीं मिलता। एक तरफ शरद पवार जी बोलते हैं कि जो जो किसानों को मानते हैं शरद पवार जी, और जो किसानों की क्या कमजोरी है वो पहचानते। उन्होंने बार बार कहा है कि पहले तुम किसानों को मदद करो। अरे किसानों को क्या मदद करेंगे, अभी इनके पास तो पैसा नहीं है। देखा जाए तो करोड़ों का कर्जा हुआ है, करोड़ों जी। लाखों करोड़ों का कर्जा हुआ है। जितने पानी पुरवठा योजना है, सार्वजनिक बांधकाम खाता है, जो भी जितने भी शासकीय कार्यालय का काम चालू है उससे पिछले कई सालों से उनका पैसा नहीं मिल रहा है। कितने ठेकेदारों ने, बहुत से ठेकेदारों ने आत्महत्या भी कर लिए। बस ये दिखावा दिखाते हैं, बोलते हैं, निकल जाते हैं। फिर दोबारा जब जब चुनाव आता है तब चुनाव के सामने लोगों के पैर पकड़ते हैं। अरे ये स्थिति है शाहजहां महाराष्ट्र साहब, शाहजहां अख्तर जी, मैं चाहूंगा कि आप जी, जरा जी। जरा मराठी में बोले, मराठी में बोलिए। हाँ। सवाल पहले सवाल सुन लें। आपने कहा था कुछ 6 महीने पहले जो आपसे बातचीत हुई थी, आपने बताया था, सुनने वाली बात है संजय ठाकुर जी और आसिफ फारूकी साहब, सुनने वाली बात है ये। आपने कहा था कि 12 दिन में एक बार पानी आता है या 10 दिन में एक बार पानी आता है शोलापुर में। क्या आज भी वही स्थिति है? क्या आज भी बच्चों की किताबें कर्नाटका स्टेट से आती हैं, लोग कन्नड़ में पढ़ते हैं? क्या आज भी जो स्कूल्स को सब्सिडी मिलती है क्या वो कर्नाटका गवर्नमेंट देती है? बोलिए सर। सोलापूर मध्ये तर परिस्थिती इतकी वाईट आहे की 365 दिवसाची तुम्ही पाणीपट्टी घेताय महानगरपालिका, मात्र पाणी आठवड्यातून 5 दिवसातून एक वेळ मिळते। 5 दिन में ही एक बार। परिस्थिती आहे सोलापूरची। जी। आणि गेले आता मी सोलापूरला राहतो त्याला जवळपास 25 वर्ष झाली सर, आणि तेव्हापासून जे बघतो ते त्या स्थितीत काही सुधारणा झाली नाही। आणि किती लोक आले किती गेले,
पालकमंत्री येतात, हे येतात, ते येतात, नुसते आश्वासन देतात आणि निघून जातात. जर प्रत्येक वेळी आज गेले काही दिवसापासून ज्यांना शेतकऱ्यांचा आधारवड मानला जातो, ज्यांना शेतकऱ्यांचा राजा मानला जातो, ते शरद पवार सांगतात की पहिले अगोदर पाहणी करणे वगैरे बंद करा, त्यावर पैसे खर्च न करता शेतकऱ्यांना तुम्ही मदत करा, शेतकऱ्यांना उभा करा. आज परिस्थिती अशी झाली सर की आज आता येत्या 5 वर्षात शेतकरी हा उपजा येऊ शकत नाही. तो इतका पहिलाही कर्जाच्या बाजारात डुबलेला आहे. आणि आता हे जे झालेलं नुकसान आहे शेतीचं, प्रचंड करोडो मध्ये नुकसान झालेलं आहे. जवळपास 97 लाख हेक्टर मध्ये नुकसान झाले पिकाचं. अशी परिस्थिती झाल्यानंतर हे शासन काय करतंय? काही करत नाही शासन. सर, वो कर्नाटक आज की इतकं बात बघितलं बताएं. तर शासनावरचा सर्वसामान्य माणसाचा जो विश्वास आहे तो विश्वास पूर्णपणे उडालेला आहे. शाहजहां जी, सोलापूर जिल्ह्याची कर्नाटक, परिस्थिती कन्नड़, बघितली तर किताबें कन्नड़ काँग्रेसची में. सत्ता नसताना काँग्रेसच्या खासदार प्रणितीताई शिंदे या प्रत्येक गावोगावी जाऊन, प्रत्येक खेड्यापाड्यात जाऊन लोकांच्या गाठीबिटी घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीनं जागेवर फोन करीत आहेत. मग शाहजहां यांच्याकडे सत्ता अतरजी. असून काय फायदा आहे एवढा? शाहजहां अतरजी, केवळ हे सत्तेचे भुकेले लोक आहेत. फक्त यांना सत्ता पाहिजे, लाल दिव्याची गाडी पाहिजे, ह्याशिवाय दुसरं काय नको. लोकांचं अरे, सर्वसामान्य शाहजहां अतरजी, लोकांचं, इतने शेतकऱ्यांचं गुस्से हित मत होइए. यांना अजिबात काय बघायचं नाहीये. सर इतने अशी भावुक मत परिस्थिती हो. आहे, सर. सर इतने भावुक मत हो जाइए. शाहजहां अतरजी, जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, आपने पिछली बार बताया था कि पुस्तकें जो हैं, टेक्स्ट बुक जो हैं, वो कन्नड़ में हैं, स्कूल जो हैं वो कन्नड़ा स्कूल्स हैं, और कर्नाटक सरकार से पैसा आ रहा है. क्या अभी भी वही स्थिति है कि चेंज हुआ है? बोलिए. हा अभि आता पण तीच परिस्थिती आहे सर. जे विजापूर भागातला काही भाग जो पूर्वी सोलापूर जिल्ह्याशी जोडलेला होता किंवा सोलापूर जिल्ह्यातला काही भाग हा विजापूरमध्ये आता अक्कलकोट परिसरात पाहिलं तर तिथील शाळेतील मुलांना मराठी कळतच नाही काय. आजही तिथं तुमचे कन्नड भाषा शिकवली जाते. जी, गॉट इट. त्यामुळे त्याचा नाही Very, आहे ना. very, very आणि strange एकीकडं situation. म्हणजे बरेचसे लोक तर अगदी अक्षरशः आम्हाला महाराष्ट्रातून वगळून आम्हाला कर्नाटक मध्ये सामील करा, ही पण मागणी गेल्या वर्षी बऱ्याचशा लोकांनी केली होती. काही जी. लोकांनी गाव पण बंद केलं होतं. या बऱ्याचशा घटना घडलेल्या आहेत. परंतु वास्तविक त्या लोकांची काय नेमकी गरज आहे, काय त्यांना हवंय, आता हूं आपके पास वापस. शाहजहां, आप हमारे साथ रहे. सर्वसामान्य शाहजहां अतरजी, आप हमारे साथ रहे. एक मिनट. ठीक है, एक मिनट. शाहजहां अतरजी, आपकी बात आ गई. एक मिनट जरा रुकिए. कॉलेजमध्ये जाऊ शकत नाही. सर, शाहजहां बेटे, एक मिनट. आज डॉक्टरची पे लाखो रुपयाचे झाले. इंजिनियर शाहजहां अतरजी, एक मिनट. कुठून आणणार पैसे? एक मिनट. आसिफ फारूकी साहब, आपने सुना. करायचा काही I don't think Shahjahan can hear me. Can somebody tell him, please? यासाठी शासनाने Engineering, please tell Shahjahan साहब. शाहजहां साहब के पास शायद ब्लूटूथ नहीं है. टक्के झालंय हे. अरे शाहजहां अतरजी, एक मिनट. सर, बिना ट्रक के ब्रेक की तरह मत चलिए. रुकिए. अरे थांबा. एक मिनट. शेतकरी आज सुधारणार नाही. अरे शाहजहां जी, एक मिनट सर. थैंक यू. आसिफ फारूकी साहब, आपने सुना शाहजहां अतरजी ने वहां से क्या बोला कि भले कांग्रेस के लोग हो, भले बीजेपी के हो, जो भी सरकार हो, शोलापुर को निगलेक्ट किया गया है. सर 5 दिन में एक बार फ्रेश वाटर आता है शोलापुर म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से. और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आज आदरणीय सम्माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर गए हैं और उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी करी है. उन्होंने ये कहा है कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी आप तस्वीर भेजें अपने फोन से, जो फोन आपके आधार के साथ लिंक्ड है, तो उस नुकसान की भरपाई एकदम इंटरिम रिलीफ आपको मिल जाएगा. लेकिन सर दूसरी चीज जो इन्होंने बताई वो शॉकिंग है. 5 दिन में एक बार फ्रेश वाटर आता है और अभी इतना पानी है कि उसका क्या करें लोगों को मालूम नहीं है. दूसरी चीज, वहां पर जो स्कूल्स हैं, तकरीबन 30 से 40% स्कूल्स हैं, वहां पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कन्नड़ है. सर कन्नड़ बीजापुर के साथ में है ना लग के, इसलिए कन्नड़ है. तो महाराष्ट्र सरकार वहां पे क्या कर रही है? और ये अभी की प्रॉब्लम नहीं है बाय द वे, ये जब से महाराष्ट्र बना है तब से प्रॉब्लम है ये. अब आप बोलें आसिफ फारूकी साहब प्लीज. नहीं प्रॉब्लम नहीं है सर. ये उस जमाने से जब डिवीजन हुआ है तो उस वक्त वो डिमांड था जी. लेकिन अब धीरे धीरे करके जब वो मराठी मीडियम हो गया और ये महाराष्ट्र के अंदर आ गया तो अब उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है और हमको एहसास हो रहा है और उसको मेरे ख्याल से गवर्नमेंट अब उसको सही कर देगी. तो उसमें इस तरीके की बात करना कि कोई भेदभाव हो रहा है, मुझको नहीं लगता है कि उसका वो है. दूसरा मसला जो है वो पानी का है. तो पानी का मसला जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे उसको सही करना चाहिए. 5 दिन में एक बार क्या,
उसको डेली पानी आना चाहिए। उसकी सिचुएशन किस तरीके से सही होगी वो वहाँ लोकल मसला है, मुझको बहुत ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज भी नहीं है। लेकिन ये एसेंशियल चीज़ों में से है और वो पानी का इंतज़ाम करना चाहिए हम लोग को। जो इस किस्म के पानी है जिसको पीने के काबिल बनाया जाए, यूजेबल बनाया जाए, तो उसमें खर्च ज़्यादा होता है मेरे ख्याल से। इसको बैलेंस करके वहाँ की एमपी है परिणीति शिंदे, जी हम लोग उनसे मिलते भी रहते हैं, तो हमारे पड़ोस में रहती हैं यहीं बांद्रा में। हम उनसे जब भी मिलेंगे नेक्स्ट टाइम हम इस बात का उनसे सवाल भी करेंगे और ये मुद्दा बहुत ही गंभीर मुद्दा है। आसिफ फारूकी साहब, आपको मालूम है वहाँ सोयाबीन और चावल की जो पूरी पूरी खेती है वो पूरी खराब हो गई इस बार। इट्स बीन डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली। किसान क्या करेगा मालूम नहीं है इसमें। सर इसमें तो सर सवाल सोच ले सर, सवाल मुझको टेक्निकल लगता है कि ये शिंदे फैमिली जो है ये बहुत ही इमोशनल है उस सर, इलाके टेक्निकल के। सवाल है सर, पूरी बात सुन लीजिए। सवाल ये है कि अभी रिलीफ आएगा, उसके ऊपर संजय ठाकुर जी जरा विस्तार से बताएंगे। अभी स्टेट गवर्नमेंट रिलीफ देगी, देयर इज नो डाउट, आएगा ही। एक नाथ शिंदे साहब ने भी बोल दिया है, देवेंद्र फडणवीस जी वहां खुद गए हैं, देयर विल बी रिलीफ, बट दैट रिलीफ विल कम थ्रू द बैंक्स। बैंक के थ्रू रिलीफ आएगा। जब तक आप एटलीस्ट बैंक लोन्स पे जो फार्मर्स के पास हैं उसका वेवर नहीं करेंगे या उसको रोल ओवर नहीं करेंगे तो फार्मर को तो कुछ नहीं मिलेगा। जो फार्म रिलीफ का पैसा आएगा, मैं आपको लिख के दे देता हूं सर, जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं they will use that as their interest as owed to them. Farmers will get nothing. So don't you think the Congress should raise its voice right now? आपके सबकाल जी को, प्रणति शिंदे जी को अभी बोलना चाहिए कि प्लीज एक ऑर्डर दे दीजिए, जीआर निकाल दीजिए कि जो पुराना इंटरेस्ट लगा हुआ है लोगों का उसको रोल ओवर कर दीजिए, क्योंकि मालूम है पैसे है नहीं सर, वी कैन नॉट डू लोन वेवर, नहीं कर सकते, रोल ओवर कर दीजिए। एक जगह सुना बोलिए था उन्होंने ये मुद्दा उठाया था जी कि पुराने जो इंटरेस्ट वगैरह है उसको इसमें न जोड़ा जाए, और मेरे ख्याल से अब इसकी बहुत ज़्यादा ओपन ज़रूरत है कि उसको किसानों को कुछ नहीं मिलेगा सर। निकाल के उसको प्रदीप जी, एक अनदर आसिफ इश्यू फारूकी साहब, क्लियर किया जाए। आप बार बार यही शरद पवार साहब कह रहे हैं कि हमारा वक्त में 70,000 करोड़ हमने फार्म लोन वेवर किया। अभी फिर शरद पवार साहब ने सब किसानों को इकट्ठा करके बोला कि किसानों को न्याय चाहिए, नहीं तो नेपाल जैसे एक आंदोलन यहां पर छेड़ा जाएगा। तो क्या इतना प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 6,000 का है, स्टेट भी 6,000 दे रहा है, अलग अलग किसान बीमा जो क्रॉप इंश्योरेंस है वो पैसे, तो किस प्रकार से आप देखते हो? न्याय सरकार तो दे रही है ना, फिर भी शरद पवार साहब जिस प्रकार से उग्र आंदोलन की बात कर रहे हैं, ये जिस तरीके से अभी कहा उन्होंने कि बैंक का पहले उसमें इंटरेस्ट चला जाता है, तो ये अल्टीमेटली घूम फिर के वो पैसा उनको रिटर्न चला जाता है और जो फार्मर्स को है उसको डायरेक्ट मदद नहीं मिल पाती है। तो मुझको लगता है कि इस वक्त ये ज़रूरत है कि जो भी पैसा वहाँ से रिलीज़ किया जाए वो डायरेक्ट उनके खाते में जाके और उनके काम में आए, ना कि उनकी जो पुराने खाते में कुछ लोन लिया हुआ है या इंटरेस्ट है वो फिर वापस से बैंक में चला जाए, उनके इस्तेमाल के लिए आ जाए। क्योंकि फार्मर्स के ऊपर महाराष्ट्र में बड़ा अत्याचार हुआ है, कुछ तो उनका नेचुरल डिज़ास्टर रहा है, कुछ उनकी फसलें बर्बाद होती रही हैं, उनको नुकसान हुआ है। तो इस वजह से ये पूरा मामला जो है समझ के ये होना चाहिए कि उनको डायरेक्ट उसका फ़ायदा पहुँचे, ना कि लोन इसलिए दिया जाए कि वो बैंक अपने सर लोन पहले जो 70,000 करोड़ की जो बात करी प्रदीप जी ने, मैं सीधा जाता हूं अभी संजय ठाकुर साहब के पास। संजय ठाकुर साहब, जो बार बार 70,000 करोड़ की बात की जाती है ना, एक्चुअली इट वाज 73,000 करोड़। पी चिदम्बरम साहब फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, आपको याद होगा, दैट वाज नॉट अ फार्मर लोन, दैट वाज फॉर ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स टू बैलेंस देयर बुक्स, दैट वाज एक्चुअली शरद पवार लोन, लेट्स बी वेरी क्लियर, एंड आई एम विलिंग टू फेस एनी कोर्ट ऑफ लॉ फॉर इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्योंकि जो 70,000 करोड़ दिए गए थे वो कोऑपरेटिव बैंक्स जितने हैं ना सर, उनकी पोजीशन बहुत बढ़िया हो गई, जिसकी वजह से शरद पवार साहब की एनसीपी अभी आज तक चल रही है। मतलब दोनों एनसीपी चल रही है उसकी वजह से। और ये मेरे शब्द नहीं है सर, ये देवेंद्र फडणवीस साहब के खुद के शब्द हैं। मेरा ये कहना है कि आज की तारीख में आपका दारोमदार बनता है सर किसी भी तरीके से, ये कोऑपरेटिव सेक्टर जो है, या तो इसको अब आप बिल्कुल फेयर कर दीजिए, बहुत अच्छे तरीके से कर दीजिए, और वील हैव अ प्रॉब्लम, क्योंकि फार्मर्स को कुछ नहीं मिलेगा संजय ठाकुर साहब, फिर बोल रहा हूं मैं आपको। क्योंकि सबसे पहले ये, क्योंकि फोन इज लिंक्ड टू आधार कार्ड, द रिलीफ विल कम दैट विल बी लिंक्ड टू आधार कार्ड।
आधार कार्ड इज लिंक्ड टू द कोऑपरेटिव बैंक विल फर्स्ट कीप इट्स ओन इंटरेस्ट, और उसके बाद फार्मर को कुछ मिलने वाला नहीं है। संजय ठाकुर जी प्लीज। देखिए बजाज साहब, सबसे पहले तो ये एक प्राकृतिक आपदा है जी, दुरुस्त बात। हर किसी को, सरकार और सरकार के बाहर के दोनों लोगों को संवेदनशील होना चाहिए। जैसे कि हमारे आसिफ भाई बहुत अच्छी बात कर रहे थे, लेकिन दुखद पहलू ये है कि विपक्ष को जब इस तरह की कोई आपदा आती है तभी उनको शेत मजूर और खेती की याद आती है। आप मुझे बताएं, अभी भाई साहब कह रहे थे कि इतनी खराब परिस्थिति है सोलापुर में कि पीने का पानी 5 दिन में 1 दिन आता है, सोलापुर की स्थितियां। आप मुझे बताएं, आज की सांसद जो हैं प्रणीति शिंदे जी, उनके पिताजी का पूरा जीवन, पूरा करियर वहीं से रहा। उसी सोलापुर ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, उसी सोलापुर ने उनको इस देश का गृह मंत्री बनाया। अब कोई उनसे ये नहीं पूछता कि आपने अपना पूरा जीवन बना लिया, अपने परिवार का उत्थान कर लिया, लेकिन सोलापुर के विषय में आपने क्या किया। बड़े अच्छे नेता हैं, मेरे बहुत अजीज रहे, मेरे बहुत अच्छे संबंध भी रहे हैं उनसे, लेकिन जो दुखद पहलू है वो है। और मैं समझता हूं कि इस तरह की आपदाओं के समय में कभी भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। और मुझे खुशी है इस बात की कि आज आसिफ भाई मेरे साथ बैठे हैं और बहुत संजीदगी से बात कर रहे हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि क्योंकि अब तक की जो सरकारें रही हैं पहले, और खास तौर पे एनसीपी, उसका पूरे कोऑपरेटिव नेटवर्क पे पूरा कब्जा रहा है। और जैसा कि आपने कहा, जिस फार्म लोन की बात कर करके मनमोहन सिंह के जमाने की ये लोग बातें करते हैं, उसका असल में फायदा एक्चुअल फार्मर्स को कुछ हुआ नहीं था। और आप जानते हैं कि लाखों लोग उसमें ऐसे थे जिन लोगों का फार्मिंग से कोई संबंध नहीं था। और शायद इसीलिए जब पृथ्वीराज चौहान ने वहां पे व्हाइट पेपर लाया तो सरकार गिरने की नौबत आ गई और उनको उस चीज को क्लीन चिट देना पड़ा। तो देखिए बजाज साहब, आज की जो सरकार है, आज की सरकार का जो नेतृत्व है, बिल्कुल संजीदा नेतृत्व है, बहुत संजीदगी से काम करते हैं। और निश्चित तौर पे आज वो वहां गए हैं, वहां के हालात देखे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं देवेंद्र फडणवीस जी की तरफ से और महाराष्ट्र शासन की तरफ से कि निश्चित रूप से हमारे वहां जो शेत मजूर हैं, हमारे शेतकरी बंधु हैं, उन लोगों को निश्चित तौर पे सहायता दी जाएगी। ठाकुर साहब, और सहायता मिलेगी। ठाकुर साहब, you have disbursed, the government has disbursed around 2,500 crores to 17 districts, 17 district badly affected है। एंड हमने देखा कि दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री शिंदे साहब तो गाड़ी लेके जा रहे हैं जिसमें पूरे फूड ग्रेन्स वगैरह भरा हुआ है इमीडिएट रिलीफ के लिए। बट शरद पवार साहब, जिस प्रकार से आलोचना कुछ दिनों से लगातार चालू है कि एक नेपाल जैसे सिचुएशन यहां पर क्रिएट होंगे महाराष्ट्र में, स्पेशली बिकॉज किसानों के कोई बात नहीं कर रहा सरकार, किसानों की तरफ सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। नाउ शरद पवार इज अ वेरी सीनियर लीडर, ठाकुर साहब, वेरी सीनियर लीडर, और एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रह चुका है। दुख दर्द वो समझते हैं किसानों के, जब वो कहता है तो समथिंग सिग्निफिकेंटली रॉन्ग। ठाकुर साहब, समथिंग इज सिंपली रॉन्ग द वे पीपल, द गवर्नमेंट इज हैंडलिंग द फार्मर्स। ठाकुर साहब, नाम्बियार साहब, महाराष्ट्र का शेतकरी खाली बारामती में नहीं रहता और सोलापुर महाराष्ट्र के बाहर नहीं है। शरद पवार जी कई बार मुख्यमंत्री रहे, शरद पवार जी इस देश के कृषि मंत्री रहे, तो शरद पवार जी को तो बहुत सीनियर नेता है, मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग भी नहीं कर सकता कि शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातों को करने के लिए, लेकिन बहुत सीनियर है। बड़े आदर के साथ मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि आप संजीदा नहीं है और आप ईश्वर का भला करें, ईश्वर को मनाएं कि नेपाल जैसे हालात ना हो इस देश में। अगर नेपाल जैसे हालात हो गए तो शरद पवार जी जैसे और विरोधी पक्ष के नेताओं को भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी, क्योंकि इस देश का नौजवान इन लोगों के रोज भड़काने के बावजूद भी जितने नौजवानों के चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज के चुनाव हो, चाहे लोकल बॉडी के चुनाव हो, नौजवान पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, वोट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जेनजीज की बात कर रहे हैं, देखिए दूसरी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस देश का नौजवान ये जानता, मैं बताना चाहता हूं। और आप और बजाज साहब इस बात से सहमत होंगे, नेहरू जी की सरकार थी तब इस जमाने में इन्फ्लेशन और महंगाई की दर 24% हुआ करती थी। आदरणीय मनमोहन सिंह जी थे उस समय 12-12.5% थी, और आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 1.5 से 2% है। ये समझने की बात है और इस देश का युवा समझता है। भले शरद पवार जी जैसे पुराने नेता बहुत राजनीतिक हो सकते हैं, लेकिन आज जो चल रहा है, अगर इन लोगों को युवाओं के मन में क्या चल रहा है, युवाओं की स्थिति क्या है, उसको भाग गए होते, अगर उसका अंदाजा होता तो वो ये लोग उस तरह की बेतुकी बातें ही ना करते।
नरेंद्र मोदी जी जब से इस देश की सत्ता संभाले वो जानते थे कि मुझे क्या करना है और मेरे रास्ते में रोड़े अटकाने के लिए इस देश का विपक्ष क्या क्या करेगा। इसलिए उन्होंने इसके पहले ही जो स्टेप लिए हैं ना 2014 में आते ही जो चेंजेस की बात कर रहे हैं वो चेंजेस नरेंद्र मोदी जी के अलावा और किसी को इनको पहचानता भी नहीं, क्योंकि जब उसकी उम्र 10-12 साल थी 24 साल होने तक की उम्र में उसका सफर नरेंद्र मोदी जी के साथ, नरेंद्र मोदी जी के विकास की पॉलिटिक्स के साथ उसके जीवन का सफर हुआ है। तो वो इस चीज को जानता है कि इस देश के विपक्ष में जो लोग बातें कर रहे हैं। संजय ठाकुर जी, छोटी सी बात है, वो तो चलो ठीक है, नेपाल जैसी स्थिति यहाँ पे कभी आने वाली नहीं है, बांग्लादेश वाली स्थिति, श्रीलंका वाली स्थिति, पाकिस्तान वाली स्थिति यहाँ पे कभी नहीं आएगी। लेट्स बी वेरी क्लियर। हाँ, कैसे आएगी बजाज साहब? दिस इज इंडिया। अरे सर छोड़िए ना ये मजाक सर, ये मजाक की बात है, छोड़िए। हाँ, हो गया ना। No one takes it seriously. Let me tell you, we should not take it seriously either. But Pradeep ji had to ask you that question because Sharad Pawar Sahab had said it. Let's be very clear. But all I am saying to you is this, sir. शोलापुर में, for example, since we are talking about शोलापुर में ये 5 दिन में एक बार पानी की स्थिति अभी की नहीं है, ये 20-25 साल से ऐसे ही हो रहा है, 20-25-30 years ऐसे ही है। नंबर 2, शोलापुर में सर, बिकॉज इट इज ऑन द बॉर्डर ऑफ कर्नाटका एंड कर्नाटका गवर्नमेंट एज यू नो क्लेम शोलापुर, वो कहते हैं कि यार ये हमारा है। वहां पर एटलीस्ट 40% ऑफ द स्कूल्स आर बीइंग टॉट इन कन्नड़ एंड दे आर एडेड बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट। सर व्हाट इज गोइंग ऑन सर? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं सर, उसको उस तरफ ध्यान दीजिए ना प्लीज। जो शोलापुर की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है सर, उनको बोलिए आप लोग कर क्या रहे हैं, बिकॉज दे आर गेटिंग वाटर। आई नो फॉर अ फैक्ट कि वाटर पाइपलाइन है वहां पे। आई नो फॉर अ फैक्ट दैट देयर इज अ प्रॉपर वाटर रिजर्वॉयर ओवर देयर। सो व्हाट आर दे डूइंग? My information is that they are probably selling it to the water mafia, and as a result of which people are getting it maybe once in 5 days. Exactly what was happening earlier in Mira Road, in Vasai and Virat. Till, as you know, Devendra Fadnavis came along and broke that mafia. Now, I would like to ask you, sir, don't you think you should please pay attention there? 5 दिन में एक बार पानी। सर अभी की स्थिति नहीं है तो बाढ़ की स्थिति में बात नहीं कर रहा हूं सर, 20-25 साल से यही स्थिति है। अब आप बोलो सर। संजय ठाकुर जी। बजाज साहब, सच है, इतनी दुखद बात है जी, लेकिन जब आप 25 साल की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे हर विचारधारा की सरकारें इस 25 सालों में रही हैं जी, और मैं समझता हूं हम जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं पिछले 25 सालों में उससे ज्यादा समय तक दूसरे विचारधारा की सरकारें। निश्चित तौर पे ऐसी अड़चने होंगी जो शायद सरकारों के बस में नहीं हो पा रहा है, या कभी न कभी जो सीमा विवाद हैं इस देश के राज्यों के आपसी अंतर्गत संघीय व्यवस्था में, इन विवादों से ऊपर उठकर किसी भी पक्ष के नेताओं को अपने प्रदेश के, अपने देश की जनता को कम से कम पीने का स्वच्छ पानी मुहैया कराएं, ये उनका मौलिक अधिकार है और निश्चित तौर पे इसके लिए काम किया जाना चाहिए और काम होना चाहिए। और मैं सरकार का एक प्रतिनिधि होने के नाते मेरे लिए तो ये बहुत शर्मसार करने वाली बात है जी, लेकिन स्थितियां भी वहाँ ऐसी हैं बजाज साहब जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि Can we please, one second sir, can we please lower Pranati Shinde's volume? Why do we have Pranati Shinde's volume on please? Can we lower that? Please, जी, बोलिए सर। आप बोलिए संजय ठाकुर साहब प्लीज। जी, तो मैं यही कह रहा हूं कि जरूर वहां पे स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसी बातें होंगी बजाज साहब। सच कहूं तो मैं ईमानदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि असल में इसका क्या कारण है मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है, और ये समस्या है और ये इतनी गंभीर समस्या है जिसपे तुरंत सरकारों को ध्यान देकर इसका इंतजाम करना चाहिए। दोनों सीमा के पार जाकर दोनों तरफ की सरकारों को इस विषय पे, क्योंकि जो लोग तकलीफ में हो भारत देश के लोग हैं, वो चाहे कर्नाटक के लोग हो चाहे महाराष्ट्र के लोग हो, हमारे अपने लोग हैं। दुरुस्त बात। और ये उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, अगर ज्यादती हो रही है, हमारे किसी राजनीतिक किसी इस तरह के निर्णय की वजह से अगर उनको दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, तो उसको सॉल्व करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन दुखद पहलू है कि हमारे इस देश का विपक्ष मौका पाते ही
नए नए नैरेटिव बनाकर इस देश में दंगे कराना चाहता है, इस देश के नौजवानों को भड़काना चाहता है और उसकी सत्ता में फिर से लौटने की उम्मीदें टूट चुकी हैं। वो बिना सत्ता के बिल्कुल बौखला गया है, किसी भी तरह से ठाकुर सत्ता में साहब, आना चाहता है। मुझे लगता है शायद इसलिए इस तरह की हरकत। ठाकुर साहब, उद्धव ठाकरे जी जैसे आरोप लगा रहे 50 करोड़ एक दिन में फडणवीस साहब के एडवर्टाइजमेंट में आप खर्चा कर रहे हो, मगर आपको किसानों को देने के लिए पैसा नहीं है, लोन वेवर नहीं हो रहा है, फार्म वेवर नहीं हो रहा है, बीक बीमा नहीं हो रहा है, तो क्या जब ये कहते हैं तो सोचने के लिए मजबूर नहीं होते हैं लोग? तो ये तो सही कह रहे हैं कि 50 करोड़ अगर एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग्स पे लगा देते हैं फडणवीस साहब के, और किसान बेचारे तकलीफ में है। पवार साहब का कहना है कि 2 महीने से बेचारे चिल्ला रहे हैं कि दे दो पैसे, दे दो पैसे, दे दो पैसे, नहीं हो रहा काम। ठाकुर साहब देखिए नौबियार साहब, महाराष्ट्र की राजनीति में ये तो सब जानते हैं कि आज के दिन में उद्धव ठाकरे से बड़ा मौका परस्त कोई दूसरा नेता है नहीं। वो मौका परस्ती की बातें कर रहे हैं, उनको महाराष्ट्र की जनता से कोई लेना देना नहीं। अगर उनको महाराष्ट्र की जनता की चिंता होती तो 2.5 साल मुख्यमंत्री वो खुद थे। 2.5 साल का समय भी काफी होता है एक निर्णय निकालने के लिए, एक जीआर निकालने के लिए, एक नया निर्णय लेने के लिए। और 2.5 साल जब वो सत्ता में थे तब 2.5 बार तो मंत्रालय नहीं गए। वो खुद अपने गिरेबान में झांक के देखते नहीं है और दूसरे लोगों को वो आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। ताउम्र मैं यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी, मैं आईना साफ करता रहा, और अभी भी उनको अकल नहीं आ रही। जब उनके चाहने वाले, जिसको बड़ी मेहनत से बाला साहब ने अपने खून पसीने से बनाया था, वो सबके सब छोड़कर उनको तनहा चले गए, तब भी उनकी दिमाग की बत्ती जल नहीं रही है। तो मैं ऐसे लोगों को क्या कहूं? ये कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। ये मौका पर सर 2 साल तक कोविड था ना। जब देश मुश्किल में होगा, प्रदेश मुश्किल में होगा, तो ये इसी तरह की बातें करेंगे। सर 2 साल तक कोविड था, कोविड हाथ आगे नहीं बढ़ाएंगे कि आप आइए हम आपकी मदद करेंगे इसमें। अरे संजय ठाकुर साहब, बी फेयर, कम ऑन, बी फेयर सर। 2 साल के लिए कोविड था सर, लॉकडाउन था, क्या करते हो? उद्धव जी क्या करते हैं सर, और सरकार क्या करती है? मैं जानता हूँ आपके बहुत अच्छे मित्र हैं उद्धव साहब। सर सभी अच्छे मित्र हैं। कॉर्नर होता है बजाज साहब। सर कौन अच्छा मित्र नहीं है मेरा? आप मुझे बताइए। देवेंद्र फडणवीस जी मेरे अच्छे मित्र नहीं है क्या? क्या बात? नहीं, हम भी आपके अच्छे मित्र हैं। सर बिल्कुल ऐसी बात नहीं है सर। लेट्स बी सर, लेट्स बी वेरी वेरी फेयर। That Uddhav Thackeray ji, I agree with you. He should have gone to the office more times. He should have been aware कि क्या पार्टी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वगैरह वगैरह, और पार्टी के लोग कितने नाराज बैठे हैं उनसे। ये सब सर, this happens. Let's be very clear. But then if it could happen to Indira ji also, 1978 में कांग्रेस स्प्लिट अप, दो पार्ट में बन गई थी। हमारे ही शंकर राव चौहान साहब, सॉरी नॉट शंकर राव चौहान, हमारी यशवंत राव चौहान साहब एक तरफ हो गए, इंदिरा जी एक तरफ हो गई। तो सर वो होता है। It happened in Delhi. So I was still in school at that time, of course. But then these things happen. Thankfully, it has never happened to the BJP. BJP में आज तक कभी नहीं हुआ है. But that is because all of you are a cadre-based party. आपका कार्डर बहुत स्ट्रांग है और आपकी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट जो है वो बहुत स्ट्रांग है। इसलिए कुछ भी होता है आप आपस में तय कर लेते हैं, किसी को मालूम नहीं पड़ता, और मालूम पड़ता भी है तो मालूम पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। बट ऑल आई एम सेइंग संजय ठाकुर साहब, यू आर अ सीनियर मैन इन द बीजेपी। सर मैं अभी शाहजहां अथर साहब के पास वापस जाता हूं। सर देखिए, शोलापुर इज इन अ बैड स्टेट, आसपास की इलाके बहुत बैड स्टेट में है सर। और जो अभी आसिफ फारूकी साहब ने कहा, हैट्स ऑफ टू हिम, ही इज नॉट डूइंग पॉलिटिक्स ऑन इट, ही इज जस्ट सेइंग लेट्स डील विद दिस सिचुएशन फर्स्ट, पॉलिटिक्स होती रहेगी। अभी क्या हुआ है शाहजहां साहब, जो सोयाबीन की जो पूरी की पूरी क्रॉप थी वो तो खत्म हो गई, चावल की भी ऐसी की तैसी हो गई, और बाकी जो दाल वगैरह उगाते थे, बीच बीच में जो दाल लगाते थे वो भी खत्म हो गया। और उसके अलावा मैंने तो एक और चीज सुनी है, अब ये ठीक है कि नहीं है मुझे मालूम नहीं है, कि पानी जहां जहां से पीछे जा रहा है, पीछे रेत छोड़ के जा रहा है, तो खेत भी खत्म हो गया। तो शाहजहां साहब, मतलब ये नुकसान तो बहुत ज्यादा हो गया लग रहा है मुझको, बताइए प्लीज। गो अहेड सर, शाहजहां साहब। सर, जो सेना नदी का पात्र जो सोलापुर जिले से आगे चला जाता है कर्नाटक में जी, तो उसकी मरम्मत पिछले 60 सालों से नहीं हुई। 60 साल वहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं वो बोलते हैं। शाबाश, हेलो जी, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जरूरी है। और जहाँ जहाँ पर ब्रिज बनाए तो वो ब्रिज जो पानी का हिसाब देके नहीं बनाए, तो ब्रिज छोटे हो गए और पानी ज्यादा हो गया। और जो पानी का नियोजन है, जो पानी का जो विस्तारीकरण है, तो वो होना जरूरी है।
सबसे बड़ी दिक्कत है कि सोलापुर जिले में बाढ़ आने की सिर्फ एक ही क्षीणा नदी है। वास्तविक में भीमा नदी या नीरा नदी इनको पानी रोका है। अगर वो पानी छूट जाता है तो कई गांव पानी में डूब चले जाते हैं। इसका नियोजन अभी तक नहीं हुआ है और इसका नियोजन करने की जरूरत है। आज खेती में देखा जाए तो गन्ना हो, सोयाबीन हो, सब जो फसल है वो सब पूरे पानी में फसल चले गए। अभी किसान अभी करीबन 5 साल तक उसकी स्थिति बदल नहीं सकती। तो 5 साल में वो क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या कमाएगा, बच्चों की पढ़ाई कैसा करेगा, बच्चे का स्कूल कैसे अदा करेगा, लड़कियों की शादी कैसे करेगा। अभी अभी सिर्फ सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करने पर तुलेंगे। अभी इसकी अगर ऐसा मत बोलो, सर, ऐसा मत बोलो। शाहजहां अख्तर जी, आप मुख्यमंत्री सब पूरे महाराष्ट्र में दौरा कर रहे हैं, एक नाथ शिंदे जी सब जगह गाड़ी लेके जा रहे हैं और गाड़ी में पूरे राहत का सामान भर भर के लेके जा रहे हैं, खाना भर भर के लेके जा रहे हैं। अजित पवार जी हर जिला में घूम रहे हैं। सर वो कितने दिन का सामान है? एक दिन दिया, फोटो निकाल दिया, शूटिंग कर दिया, टीवी को बातमी चली गई, हो गए बड़प्पन। 8-8 दिन, 15-15 दिन, महीना भी इन लोग क्या करेंगे? एक दिन के सामान के लिए सब कितना करोड़ों का खर्च करते हैं। अरे वही पैसा दे दो ना किसानों को, किसानों की भरपाई निकल जाएगी, किसानों को पेट भर जाएगा। काहे के लिए तुम्हारा पंचनामा चाहिए? कुछ जरूरत नहीं पंचनामे की। किसान देखो, उसका सातबारा देखो, उसका जमीन देखो और जगह पर जाकर उसको उसकी भरपाई दे दो ना। एक दिन के लिए तुम आते हो, करोड़ लाखों रुपए खर्च करते हो, 4 गठोड़े का सामान लेके आते हो। अरे वो सामान 10 आदमी में एक दिन भी नहीं पहुंच सकता। क्या करते हो? सामान दिया हाली पीली तुम्हारा बढ़ावा, मिनिस्टर का बढ़ावा, प्रशासन का बढ़ावा, और उसमें करोड़ों लोग चोरा भी करते होंगे शायद। यही स्थिति है सर अभी की सरकार की। बट सरकार ने करीबन 2,500 करोड़ 32 लाख फार्मर्स को अत्तर साहब दे दिया है, बोले कि इमीडिएट रिलीफ है। फिर भी सबकाल जी चिल्ला रहे कि पंचनामा मत करो, सर्वे मत करो, 50,000 एवरी अफेक्टेड फार्मर को ऐसे ही दे दो ड्यू बेसिस पे, और जिसका जमीन ध्वस्त हो गया उसको 5 लाख इमीडिएटली दे दो। तो ये सबकाल जी क्या पॉलिटिक्स नहीं खेल रहे इसमें कांग्रेस का? बरोबर है ना, क्या करेंगे सर? हर आदमी को कुर्सी की अपेक्षा है, कुर्सी के हिसाब से हर पक्ष का आदमी बात करता है। सत्ता में हो तो खाली आश्वासन देता है, विरोधी पक्ष में हो तो ये करते हैं। अरे तुम्हारे क्या देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्ष में नहीं थे क्या बोला था उसका उन्होंने? सभी किसानों का कर्जा माफ करेंगे। क्या हुआ? अभी तो तुम सत्ते में हो तो क्या हुआ उस बात का? ऐसे कितने तो बात है सर जो जब विरोधी पक्ष में थे कितनी तो बात सरकार को दिए थे, मगर अभी वो सत्ता में है। क्या बोलने की जरूरत है? कितने मांग करने की जरूरत है? फिर भी वो चुप क्यों है? शाहजहां साहब, आपसे एक पूछता हूं सवाल, आप इसको मराठी में जवाब दें। क्या शोलापुर की जनता ये चाहती है, जरा ध्यान से सुने सर, क्या शोलापुर की जनता और आसपास के जितने भी लोग हैं, आसपास के जितने भी इलाके हैं, तकरीबन कितने गांव होंगे वहां पे, जितने भी गांव होंगे, आप ये बताएं, वहां के लोग क्या ये नहीं चाहते कि यहां पे मंत्री वगैरह आए? क्या वो ये चाहते हैं कि मंत्री जी आप मत आइए, अपने ऊपर जितना आप खर्चा कर रहे हैं आप लोगों के अकाउंट में डाल दें? अब आप बोले सर, शाहजहां जी आप बोले, मराठी में बोले प्लीज। यांचा खर्च यांचा एका दिवसाचा काढा ना तुम्ही। हेलिकॉप्टर आहे, विमान आहे, गाड्या आहेत, घोडे आहेत, 100 ठिकाणचे सगळे अधिकारी। अरे तुमच्यामुळे आज अधिकारी गुंतून बसले दिवसभर। लोकांचे पंचनामे करायला गेले तर लोकांचे पंचनामे झाले असते। लोकांना मच्छीचा हात देण्यापेक्षा तुम्ही तुमच्या बढाव्यासाठी त्यांना घेऊन तुम्ही बरोबर फिरताय। कशाला पाहिजे तुम्हाला अधिकारी, सरकारी अधिकारी बंदोबस्त कशाला पाहिजे? आज पीडित लोकांकडे तुम्ही भेटायला जाताय ना, अहो भेटायला तुम्ही जाऊ नका साहेब, तुम्ही मुंबई सोडू नका, तुम्ही विरोधी पक्षात कोणाचं ऐकू नका, तुम्ही रितसर सगळ्यांना सरसकट नुकसान भरपाई द्यायचं काम चालू करा। एकरी काय 5 लाख 5,000 10,000 तुम्हाला जे काय द्यायचं ते द्या। आणि 5 10 हजारात काय होतं सांगा साहेब? अहो आज 1 एकर जमीन नांगरायचं म्हणलं तर त्याला कमीत कमी 3,000 रुपये खर्च आहे। सोयाबीन 1 एकर पेरायचं म्हणलं तर त्याला 2,000 रुपये खर्च आहे। एवढा लाखो रुपये खर्च शेतकरी करायचा, तुमची मुठभर भेट घ्यायची का त्यांनी? हेच काम चाललंय तुमचं। तुम्ही फक्त शेतकऱ्यांना, सर्वसामान्य लोकांना चिठ्ठ्या बनायचं काम सुरू आहे। माझं तर स्पष्ट मत आहे,
म्हणजे माझं वैयक्तिक मत आहे, कुणाचं काय मला माहिती नाही. आज तुम्ही बघा, विचारा 70-80 वर्षाचे लोक काय म्हणतात की आम्हाला पूर्वीचा इंग्रजांचा काळ चांगला होता, आम्हाला नको हे सरकार. अशी परिस्थिती झाली. अहो काय केलं तुम्ही? जीएसटी कमी केली. जीएसटी कमी करून काय केलं तुम्ही? जीएसटी कमी करायच्या अगोदर तुम्ही त्या मालाच्या किमती वाढवल्या आणि जीएसटी कमी केली. काय फायदा झाला त्याचा? म्हणजे जेवढे खिशातले पैसे जायचे तेवढे लोकांचे जाऊच लागलेले आहेत. मग कशाला तुम्ही नाटक करताय? जीएसटी कमी केली, आम्ही लोकांच्या पाठीमागे आहोत, आम्ही लोकांच्या बरोबर आहोत, आम्ही लोकांच्या गरजा पूर्ण करतो. अहो सर्वसामान्य लोकांची जी हिताची कामं झालेली आहेत त्या ठेकेदारांचे करोडो रुपये सरकार देणं आहे. करोडो रुपये हे कोणी द्यायचे? त्यांना देणार ते पैसे नाहीत, त्यांची बिलं निघत नाहीत. अनेक शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्रातल्या आत्महत्या केलेल्या आहेत. आत्महत्या. जी लेट्स गो आसिफ फारूकी साहब, अगर एकनाथ शिंदे जी 50 गाड़ी लेकर पहुंचता है जिसके अंदर फ्लड रिलीफ के सामान है, शिंदे साहब का कहना है कि सामान बैग के अंदर क्या है उस चीज पर ध्यान दो, बैग के बाहर अगर मेरा फोटो चिटका है उस पर आप पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हो? मैं सामान लेके पहुंचा हूं, उसमें कपड़े हैं, फूड ग्रेन्स है, लोगों के जीती जीवित ब्लैंकेट्स है, क्लोथ्स है, सामान जो पैकेट के अंदर है उस चीज पे ध्यान दीजिए। पैकेट के ऊपर अगर भले मेरा फोटो, उस पर चर्चा मत कीजिए, पॉलिटिक्स मत कीजिए। फारूकी साहब लेके पहुंचे, हर जगह पहुंच रहे फारूकी साहब। हाँ, ये तो अच्छी बात है, वो लेके पहुंच रहे हैं, लेकिन यही है कि टू लिटिल टू लेट, मतलब ये 40-50 ज्या गरजू लोकांच्या पर्यंत जर पोहोचणार आहे का? नहीं पोहोचणार नाही सामान हे. आणि 10 पिशव्या जर वाटायला तर त्यातल्या 2 पिशव्या गरजू शाहजहान को बोलने दीजिए ना, मैं नहीं, आता हूं ठीक है, आपके वो पास। अपना फोटो अरे शाहजहान बेटे लगाएंगे, इसको बोलने दो इंजीनियरिंग प्लीज इलेक्शन में शाहजहान वोट भी अख्तर लेना साहब, है, उनको वो बोलने जीतना है, दीजिए, ठीक है, वो प्लीज, कोई खराब बात नहीं है। प्लीज। वो कोई लेकिन अगर वो टू लिटिल टू लेट, अगर वो कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं तो हमको उसकी सराहना करना चाहिए, लेकिन जिस लेवल के उनका रुतबा है, जो वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, तो मेरे ख्याल से ये 40-50 ट्रक बहुत कम है उनकी पोजीशन के लिए। उनको तो ओवरऑल इसकी सिचुएशन को कैसे उसको संभाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत सराहनीय है कि वो अगर रोड से निकल के इतनी भी मदद कर रहे हैं। इससे ये लगता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो कितनी वीक है इस फ्लड को संभालने में और जनता की मदद करने में। पर्सनल लेवल के लिए तो इनका I'll बहुत ask you सराहनीय something है। else. आसिफ फारूकी साहब, शिंदे साहब ने आसिफ फारूकी साहब, रोड पे निकल गए। आसिफ फारूकी साहब, एक छोटी सी बात आपको बोल रहा हूँ, छोटी सी बात। हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ। आई एम श्योर संजय ठाकुर साहब विल से मैं बिल्कुल गलत बोल रहा हूँ। मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपको जो सवाल पूछने वाला हूँ। सर किसी और जिले से ऐसी खबर नहीं आ रही है। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, महाराष्ट्र के बाकी जितने भी जिले हैं वहां से कोई ऐसी खबर नहीं आ रही है। इज इट बिकॉज शोलापुर हैज वोटेड फॉर प्रणति शिंदे? इज इट बिकॉज शोलापुर इज सो क्लोज टू द कर्नाटका बॉर्डर? इज इट बिकॉज शोलापुर इज वहां के जो लोग हैं, कितनी बार वहां पे सर्वेक्षण हो चुके हैं, वो कहते हैं हमें कर्नाटका को ज्वाइन करने दो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको जान करके निगलेक्ट किया जा रहा है? मैं पूछ रहा हूं आपसे, आई मे बी रॉन्ग, बट आई होप आई एम रॉन्ग। आई होप दिस इज नॉट बीइंग डन डिलिबरेटली कि इतने दिन तक कुछ नहीं हुआ वहां पे, फिर आखिर में जब, और ये भी मैंने सुना है कि अमित शाह जी का फोन आया, उसके बाद जाकर के देवेंद्र फडणवीस जी को वहां जाना पड़ा। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली। सो सर आपसे पूछ रहा हूं आसिफ फारूकी साहब, इज दैट ट्रू? बिकॉज यू आर वेरी क्लोज टू प्रणति शिंदे। बेसिक फंडा है बीजेपी गवर्नमेंट का, और उसमें बोलने की क्या जरूरत है सर, वो बिल्कुल नजर आ रहा है। और परिणीति शिंदे अभी ये साल भर से वहाँ पे एमपी हुई, इससे पहले तो कांग्रेस की वहाँ पे एमपी नहीं था, तो उस वक्त ये सत्ता में थे, उस वक्त भी ये काम कर सकते थे। तो सिर्फ ये कहना कि परिणीति शिंदे ने या शिंदे फैमिली ने नहीं किया, मुझको नहीं लगता है कि ये सही बात है। ये गलत बात है। उनकी जुरिसडिक्शन में भी नहीं है, उनकी जुरिसडिक्शन में उसकी भी नहीं है। जुरिसडिक्शन में भी नहीं है, और ये गवर्नमेंट भी नहीं है न महाराष्ट्र में। बट इज द कांग्रेस डूइंग एनीथिंग सर? आसिफ फारूकी साहब, बिकॉज अर्लियर आई रिमेंबर, जिसकी भी सरकार हो, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, एंड आई एम टॉकिंग एज अ फॉर्मर वॉलंटियर विद नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख आरएसएस के बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे, और नानाजी देशमुख ने एक स्लोगन दिया था जो आज तक लागू है, हर खेत में पानी, हर हाथ को काम। मैंने उनके साथ बहुत काम किया सर। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, जब हिंदुस्तान में वीडियो आया भी नहीं था 1979 में, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू शूट ऑन अ हीलियोस्कैन कैमरा। वीडियो टेप्स नहीं हुआ करती थी उस वक्त, अब तो खैर चिप आ गए हैं। उस वक्त हीलियोस्कैन कैमरा होता था, स्पूल होता था वीडियो का। आई हैव शॉट ऑन दैट एंड आई वर्क विद हिम। पूरा जो ईस्टर्न यूपी का बेल्ट है ना, क्वार्टर बेल्ट सर, बिल्कुल नीचे से लेकर के नेपाल के बॉर्डर तक
संजय ठाकुर साहब would be very familiar with that area. We work very hard over there, sir. जहाँ पर कोई पानी नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, मैंने वहाँ पे तकरीबन 6 महीने ऐसे करके 1-1.5 साल वहाँ पे बिताए उनके साथ। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक ज़माने में, और उस वक्त कांग्रेस भी हमारे साथ आती थी सर, कांग्रेस के जो वर्कर्स हुआ करते थे वो भी साथ में लगे थे, तो डोंट यू थिंक द कांग्रेस शुड ऑल्सो सेंड पीपल देयर टू हेल्प इन दी फ्लड रिलीफ एफर्ट? डोंट यू थिंक सो सर? आज से फारूकी नहीं, परिणीति शिंदे तो मैं देख रहा हूँ कि एक हफ्ते से वो पूरा दौरा कर रही है। सर वो तो यहाँ एमपी है ना, मैं बाकी सबकी बात कर रहा हूँ। जैसे आपका सेवा दल है फॉर एग्जांपल, उसको आप वहां भेजिए। जैसे आरएसएस के लोग हर जगह जाते हैं सर। सर सबसे पहले जहां पर भी कोई त्रासदी होती है, कोई अर्थक्वेक होता है, फ्लड होता है, आरएसएस वॉलंटियर्स आर द फर्स्ट टू अराइव, लास्ट टू लीव। आपको लगता नहीं एक जमाने में ऐसे सेवा दल के लोग भी किया करते थे, जब तक हमारे तारिक अनवर देख रहे थे सेवा दल को, तब तक की बात कर रहा हूं। और उसके बाद क्या हुआ, तारिक अनवर साहब को आपने साइडलाइन कर दिया क्योंकि वो चचा के बहुत क्लोज थे, यानी सीताराम केसरी जी के। अब वो दोबारा उनकी रिहेबिलिटेशन हुई है क्योंकि ही हैज शोन द एबिलिटी टू विन इलेक्शंस इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग। बट डोंट यू थिंक द कांग्रेस शुड रिवाइव इटसेल्फ सर? वॉलंटियर वर्क की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप चले तो हम आपके साथ जाने को तैयार हैं। आप बोलिए सर, आप कब जा रहे हैं? हम चलते हैं आपके साथ, बोलिए। नहीं, आप ये नहीं देख रहे कि कांग्रेस कितना रिवाइव कर रही है, और कांग्रेस को जिस तरीके से पीछे ढकेला जा रहा है झूठ सच बोल के, तो उसमें भी इस तरीके से अगर आवाम के सामने, पब्लिक के सामने वो स्टैंड कर रही है, तो ये बहुत ही सराहनीय है सर। अगर इस बात को अगर आप लेके बात करते हैं, और कांग्रेस ने जब भी गवर्नमेंट की है तो वो बहुत बैलेंस गवर्नमेंट की काम किया है उन्होंने। जब भी फारूकी साहब, आप इस ऐसे ऐतिहासिक निर्णय जब मोदी साहब लेते हैं, जीएसटी एक उत्सव, बचाव उत्सव, एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है, रेवोल्यूशनरी डिसीजन है। बीजेपी मोदी साहब का कहना है इंडिपेंडेंट इंडिया में इस प्रकार से कटौती टैक्स में कभी देखने को नहीं मिला, जिस प्रकार से 15% है। हाउ डू यू सी दिस? जो बचत उत्सव को आप रेवोल्यूशनरी नहीं मानते, आप उसका क्रिटिसिज्म कर रहे हो, आप मोदी साहब का क्रिटिसिज्म कर रहे हो कि किस प्रकार से। हाउ डू यू सी दैट? इतना देश के लिए अच्छा काम किया, वहां पर भी आपको क्रिटिसिज्म दिख रहा है? और सर आप ये देखिए कि जितनी इन्होंने स्कीमें निकाली हैं, सारी स्कीमें बाद में उसमें कहीं ना कहीं लाके चेंजेस किए, जो कि राहुल जी बोलते रहे, और हम ये कहीं सुनी बात नहीं कर रहे हैं। आपने प्रैक्टिकल देखा, उन्होंने जीएसटी के बारे में कहा, उन्होंने दूसरी स्कीमों के बारे में कहा, मनरेगा के बारे में आके क्या क्या मजाक उड़ाया था इसी बीजेपी गवर्नमेंट ने, फिर भी उनको कंटिन्यू करना पड़ा। उससे कितना फ़ायदा पहुंचा? तो मुझको लगता है कि सर ये लोग सीरियस नहीं है, और ये लोग ऑनेस्ट नहीं है गवर्नमेंट पब्लिक के तई, अवाम के तई। मुझको लगता है कि ये सिर्फ 2-4 लोगों के लिए काम करते हैं और उसी की तरफ ध्यान देते हैं। देश इतना बड़ा है और इसकी इकनॉमी इतनी बड़ी है कि ये अपने तरीके से खुद सेल्फ रिलायंट हो जाता है। वरना अगर ये गवर्नमेंट चाहे तो बहुत अच्छे रिसोर्स है इंडिया के पास, और चीज़ें बहुत अच्छे से टैकल की जा सकती है। जीएसटी से जितना कलेक्शन हो रहा है सर, उसका आप बाकायदा इस्तेमाल सही नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्ट करके देते हैं। आज महाराष्ट्र में अगर किसी तरह का नेचुरल डिजास्टर हुआ है तो वो चंद दिनों के अंदर दूर किया जा सकता है इनको, क्योंकि महाराष्ट्र ने यहाँ के लोगों ने इतना कंट्रीब्यूशन किया इकोनॉमी के अंदर। क्यों इस तरीके से हम लोग डिले कर रहे हैं, ये तो फिर बीजेपी वाले और इनकी सत्ता ही बता सकते हैं। मुझको नहीं समझ में आ रहा है। संजय ठाकुर जी से पूछते हैं सर, संजय ठाकुर जी से पूछते हैं। संजय ठाकुर जी, आपको लगता नहीं है सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि एड इंटरिम रिलीफ एकदम दे दिया जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ सर्वे? अभी क्या है, जब तक के सर्वेयर आएगा, जब तक के कुछ होगा, बहुत देर हो चुकी होगी सर। और दूसरी क्या है, एक और चीज जिसके बारे में हम लोगों ने बात नहीं करी, उसके बाद शाहजहां अतर जी उसके बारे में बताएंगे। पहले आपसे पूछ लेता हूँ, क्या है कि सर जानवरों का बहुत नुकसान हुआ है, जो बफलोज हैं, जो फार्म एनिमल्स हैं, बाकी उन सब का बहुत नुकसान हुआ है। यू आई थिंक कम फ्रॉम अ फार्मर फैमिली योरसेल्फ ठाकुर साहब, आपको मालूम है कि जब, सर मैं मानता हूँ किसान का जिगरा बहुत बड़ा होता है, लेट्स बी वेरी क्लियर, जो विच इज वाई इन द आर्मी there is one saying in the army, I don't know whether you know about it, कि जो किसान के बच्चे हैं ना, जब अटैक होता है, जो शहरी बच्चे होते हैं सबसे पहले भागते हैं, किसान का बच्चा खड़ा रहता है वहाँ पे, जितनी मर्जी सामने से फौज आ जाए। क्यों? क्योंकि उसने मौसम की आपदा देखी है, उसने बाढ़ देखी है, उसने अर्थक्वेक देखे हैं, उसने सूखा देखा है, उसने जंगली जानवरों के साथ उसने लड़ाई करी है, उसने डाकुओं से लड़ाई करी है। तो सर मेरा ये कहना है कि आप किसी भी तरीके से, आप भी करें, हम भी, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, वी विल आल्सो सेंड ईमेल्स दैट
the interim flood relief should be given immediately. Sanjay Thakur साहब, please. आपकी बात बिल्कुल सही है फजाज साहब। देखिए, मैं अख्तर साहब की जो बातें हैं, क्योंकि वहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ के हालात देख रहे हैं, तो कोई भी इंसान भले कितने भी सीनियर जर्नलिस्ट है, लेकिन देखिए भावुक होकर बात कर रहे हैं, क्योंकि दिल जल रहा है, तकलीफ हो रही है देख के अपने लोगों को जी। तो स्वाभाविक प्रक्रिया है उनकी। लेकिन दूसरा पक्ष उसका ये भी है कि अगर वहां कोई ना जाए तो अख्तर साहब कह रहे हैं कि क्यों आ रहे हैं, ना जाए तो लोग कहेंगे सरकार वहां जा भी नहीं सकी है। रही बात एकनाथ शिंदे जी की, तो जो एकनाथ शिंदे जी वहां जा रहे, तो जाते जाते ले गए सामान तो कुछ लोगों को तो मिल ही गया। उसमें बहुत ब्रॉडर थिंकिंग रहती है कि भाई हम जा रहे हैं, खाली गाड़ियां जा रही हैं तो गाड़ियां ले चलो साथ में, तो अपने साथ में ले चलो गाड़ियां, तो मिल जाएंगी, कुछ लोगों को तो रिलीफ मिल सकेगी। सरकार वहां पे बिल्कुल संजीदगी से काम करेगी, काम कर रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि जब हम ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में जीएसटी की बात करते हैं, दूसरी बातें करते, तो हमारे देश का विपक्ष जो है ना, वो किसी एक मत पे रहता ही नहीं। अभी तक किसी का ट्यूशन पढ़ाया हुआ राहुल गांधी जी कह रहे थे कि जीएसटी हमारे प्रेशर में कम किया गया। अभी 2 दिन पहले से आम आदमी पार्टी का भाषण सुन लिया उन्होंने, तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये बिहार का चुनाव है जो इसलिए कर दिया जीएसटी। तो देखिए, इस तरह के लोगों की कोई अहमियत नहीं है, जिनका अपना कोई मत नहीं है, जिनकी अपनी देश के लिए कोई सोच नहीं है। अगर इनकी देश के लिए कोई सोच होती तो मैं ये नहीं कहता हूं कि इस प्राकृतिक आपदा के लिए शिंदे साहब के परिवार को और प्रणीति शिंदे और उनके पिताजी को दोष दे दिया जाए, लेकिन मैं इतना निश्चित कहूंगा कि राजनीतिक तौर पे आप पूछिए सोलापुर किसका जिला है, तो लोग कहेंगे कि सुशील कुमार शिंदे साहब का। तो अगर सुशील कुमार शिंदे साहब का जिला है और उन्होंने अपना पूरा जीवन राजनीति में खत्म कर दिया, मुख्यमंत्री बन गए, गृह मंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बनने के सपने देख लिए, तो क्यों नहीं आपने सोलापुर के लोगों के लिए कुछ किया? आपकी तो सबसे ज्यादा नैतिक जिम्मेदारी बनती, क्योंकि पूरा सोलापुर आपका परिवार है, सोलापुर आपका घर है, सोलापुर ने आपको एमएलए बनाया, एमपी बनाया, आपकी बेटी को एमपी बनाया, तो आपकी जिम्मेदारी तो बनती है। बातों को लेके आप इस तरीके से किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। आप जाके शोलापुर, मैं गया हूँ शोलापुर देखने, देखा है मैंने। आप मेरे ख्याल से शोलापुर गए नहीं है संजय भाई। मेरा आसिफ भाई, आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, थोड़ा सा नहीं, लेकिन आप इस तरीके से मत बोलिए कि बात गलत रहे। आपके लिए अच्छी बातें करने जा रहा हूं। सुनिए, मेरा बस चले ना तो मैं आपको महाराष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष बना दूं, क्योंकि आप संजीदगी से मेरी उतनी क्षमता नहीं है, मैं इतना संभाल नहीं पाऊंगा। और आपके सतपाले जी है ना, जो वो जब बात कर रहे हैं वहां पे रिलीफ की, तो देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं, वो कुटिल मुस्कान जो ऐसा सोच रहा है कि वाह वाह क्या बढ़िया आपदा आई है, अभी इसमें बीजेपी को संकट आ जाएगा। देखिए आप उनकी बाइट चला के उनके चेहरे पर जरा सी भी संजीदगी नहीं है। आप देखिए अख्तर साहब बैठे हैं, कैसे भाव विवल हुए हैं, कैसे ऐसा लग रहा है कि अभी फाड़ के खा जाएंगे लोग। और आप देखिए सतपाल की इंटरव्यू को, वो आदमी मुस्कुरा रहा है खड़े रह के। महाराष्ट्र के शेतकरी, महाराष्ट्र के किसान, उनके पशुओं की क्या हालत है, उनके बाल बच्चों की क्या हालत है, उनके घर के लोगों की क्या हालत है, उनके पूरे साल की खेती बर्बाद हो गई, साल भर अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, उनके बच्चों को नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, उनके बच्चों की पढ़ाई की फीस कैसे भरी जाएगी। तो सतपाल से ज्यादा संजीदगी से बात मत कर रहे हैं भाई। मैं यही तो कह रहा हूँ, क्या हुआ विपक्ष के कांग्रेस के नेताओं को, वापस लेने के लिए काम नहीं लेते ये लोग। आप देखिए उनकी बात वापस तो मुस्कुरा रहे हैं, लगता है कि मुझे बुरा इस बात आप का। लोगों ने जो तो प्रॉमिस आदमी किया था, वादा आपदा किया था, वो में पूरा आपको कर बोल देते रहा है कि किसी तरह से सरकार को बदनाम किया जाए और सरकार को बदनाम करके महाराष्ट्र की जनता को सरकार के विरुद्ध कर दिया जाए। तो संजय ठाकुर साहब, ये लोग यहाँ नेपाल जैसा हो जाएगा। ठाकुर साहब, इज देयर नो फंडिंग? क्या सरकार ने इतना कर्ज में डूबा हुआ है? ठाकुर साहब, क्या आलोचना है यूबीटी ठाकरे साहब का, पवार साहब का और इनके सपकाल साहब का, कांग्रेस के लीडर, कि सरकार इतना कर्ज में डूबा हुआ है कि अब सरकार पे बहुत प्रेशर है किसानों के, जहां किसान है। राहुल गांधी जी भी आलोचना कर रहे थे कि आप $4 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, $1 ट्रिलियन महाराष्ट्र के बात कर रहे हैं, मगर किसान जो सुइसाइड है, द फार्मर सुइसाइड इज वन ऑफ द मोस्ट इन महाराष्ट्र, आप रोक नहीं पाए। ठाकुर साहब, तो what is happening? You are not, development भले हो रहा है, you are not considering, you are not doing much for the farmers. That's why all the opportunities, there's no funding now. फंड भी नहीं आपके पास। देखिए ना ठाकुर साहब, महाराष्ट्र के किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, ये बहुत ही दुखद पहलू है। उसके लिए मैं आसिफ फारूकी
और जितने भी लोग बैठे हुए पॉलिटिकल पार्टी में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सबकी जिम्मेदारी है और इन सबके लिए दुखद है, डूब मरने वाली बात है कि ऐसे कैसे हालात बन जा रहे हैं कि स्वतंत्र भारत में, भारत को आजाद हुए 75 साल होने को आए और आज भी हम 78 साल अपने देश के किसानों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। 78 तो साल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सिस्टम में कमजोरी है, इस बात को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन ये भी कहना ठीक नहीं होगा कि सरकारें प्रयास नहीं कर रही है, और खास तौर पे नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसका स्वप्न ही रहा है कि हम जितनी जल्द हो सके किसानों की आय को दोगुना कर दें। हमारे ऊपर लोग हंस रहे हैं कि इतनी बढ़ती हुई इकोनॉमी में आप इतने करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज क्यों दे रहे हैं? इस समय पूरे देश के हालात कैसे हैं आप देखिए, कहीं गंगा उफान पे है, कहीं यमुना उफान पे है, देश के दूसरे हिस्सों में भी तबाही मची हुई है। हम इस तबाही से निपटकर अपने देश के लोगों को, अपने भाइयों बहनों को राहत देना चाहते हैं, हम उसमें काम कर रहे हैं। जी नहीं, ये आवाज कहीं और से आ रही, हमारे वहां कोई है ही नहीं है। जी शाहजहां अख्तर साहब, शाहजहां अख्तर साहब, आप ये बताइए अभी आप क्या चाहते बता हैं? रहा हूं कि इस तरह से संजीदगी से काम लेना पड़ेगा। जी दुरुस्त बात है संजय ठाकुर साहब, आपकी बात आ गई, मैं आता हूं आपके बाद वापस। लोगों को खड़ा रहना पड़ेगा सर एक बार सुन लेना, समय में इससे मौके नहीं देखने चाहिए। सर एक बार सोलापुर के लोगों की बात सुन लेना कि आप क्या चाहते हैं कि एकदम क्या हो। सर पॉजिटिव बात करें, अभी 1 2 3 स्टेप्स में बताइए क्या करना चाहिए, आप बताइए। अगर आज आप मान लीजिए देवेंद्र फडणवीस जी के सामने बैठे हों और उनको आप बता रहे हो कि मुख्यमंत्री जी आप ये कदम लीजिए तो लोगों को राहत मिलेगी, क्या करना चाहिए आप बताएं सर। देखिए बजाज साहब, एक मिनट ठाकुर साहब, मैं शाहजहां से पूछ रहा था, शाहजहां जी से पूछ रहा था। जी बोलिए। हाँ ओके। हाँ, मैं तो इस काबिल नहीं हूं कि देवेंद्र फडणवीस जी को बता सकूं कि वो क्या है। तो शाहजहां अख्तर जी बोलिए, अगर देवेंद्र फडणवीस जी आपके सामने बैठे हों उनको आप क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं, आवाज आने दो, कोई बात नहीं, आप बस आपकी आवाज चाहिए हमको। बोलिए सर, बोलिए ना सर। मैंने आपको यह बोला कि अगर मान लीजिए देवेंद्र फडणवीस जी आपके सामने बैठे हों, उनको आप क्या कहेंगे कि 1 2 3 ये आप 3 कदम उठाइए या 4 कदम उठाइए ताकि लोगों को राहत मिले? बोलिए। मैं कोई किसी पद का, देखिए सर, मैं किसी पद का लीडर नहीं हूँ, मालूम है सर। मैं कोई पद का काम नहीं करता, मैं तो ग्राउंड लेवल पे पत्रकारिता का काम करता हूँ पिछले 45 साल से, आज नहीं। और जो पर जे गाँव मेरे सामने अगर देवेंद्र बैठे हैं तो मैं बस उनको इतना ही कहूंगा कि तुम जब तक किसानों को खड़ा नहीं करते तब तक देश नहीं खड़ा होगा, जब तक जो चलन मलन है वो ठीक से नहीं होगा। जब किसान अगर डूब जाता है तो सब पूरा देश भी डूब जाता है। यही चीजें है, सबके पास, सबके लिए किसान बहुत जरूरी है। किसान की उन्नति होना, किसान के खेती का उत्पन्न दुगना होना, यही सबसे पहले काम सरकार ने करना जरूरी है। तो योजना है, कोई अनुदान है, तो वो चाहे तुम अनुदान लोगों को कम दे दो, मगर पहले किसानों को राहत देने का काम करो। अख्तर साहब, क्या आपको लगता है जिस प्रकार से फ्लडिंग हुआ है, लैंड जो जमीन है, जमीन ध्वस्त हो गया है, घरे ध्वस्त हो गया है, तो किस प्रकार से अभी सरकार ने इमीडिएट रिलीफ भी अनाउंस कर दिया, सरकार ने इमीडिएटली रिलीफ भी अनाउंस कर दिया। आपको क्या लगता है कि व्हाट इज इमीडिएटली और रिक्वायरमेंट क्या है? और फडणवीस साहब ने कहा पंचनामे की जरूरत नहीं, आप फोटो निकाल के भेज दो, आपका फोटो निकाल के किसान भेज दे, उस पर भी हम काम करेंगे। तो इससे ज्यादा सरकार क्या कर सकता है? सरकार तो कर ही रहा है ना, फिर भी आलोचना किस प्रकार से आप देखते हो लोगों का? सरकार ने फंड इमीडिएटली रिलीज किया, 2,500 करोड़ इमीडिएटली 32 लाख फार्मर्स को रिलीफ दे दिया इमीडिएटली, और बोला सर्वे पंचनामा नहीं, फोटो भेजो और आपको पैसा मिल जाएगा, इमीडिएट इंटरिम रिलीफ। तो सरकार फुल फ्लेज्ड सपोर्ट करे, और तीनों जितने मंत्री है सब दौरे पर है, हर जगह जा रहा है। तो किस प्रकार से देखते हो और क्या चाहते हो आप सरकार से? अख्तर जी, शाहजहां, आपको आवाज आ रही है बेटे? बोलिए। सरकार ने फंड ऑलरेडी 2,500 करोड़ इमीडिएटली रिलीज कर दिया है 32 लाख फार्मर्स के लिए इमीडिएट रिलीफ, और सरकार ने बोला पंचनामा जरूरत नहीं है, सर्वे का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ फोटो निकाल के भेजो, उस पर आपका पैसा मिल जाएगा, इंटरिम रिलीफ। और सब मंत्री और पूरे प्रशासन
हर जगह दौरे पर है, तालुका लेवल लेके वार्ड लेवल तक। तो और क्या चाहते हो सरकार से आप? देखिए सर जी, फोटो पंचनामा ये तो बात जो स्थानिक तलाठी होता है, जो स्थानिक तहसीलदार होता है, उन लोग को पूरे गांव का नक्शा मालूम होता है। वो हाथ में नक्शा लेकर हर किसान के पास उसका सातबारा लेकर जा सकते हैं ना। आदमी भेजेगा तो ऑनलाइन चलेगा, वो ये ऑनलाइन भेजो, वो ऑनलाइन भेजो। अरे ऑनलाइन का तुम्हारा नेट बंद हुआ तो ऑनलाइन क्या करते, तुम्हारी साइट बंद हो गई तो ऑनलाइन में क्या करते। आज कितने तो वेरी इंपॉर्टेंट। किसान के जो योजना है, सरकार जो योजना है, ये ऑनलाइन करो, वो ऑनलाइन करो, और ऑनलाइन करने के लिए वो पूरी जो जो साइट है वो साइट ही बंद है। आज रेशन कार्ड की स्थिति देखो, रेशन कार्ड की साइट पिछले 1 साल से बंद है, किसानों को राशन नहीं मिल रहा। शाहजहां जी ये एक ठीक है। मिनट, शाहजहां जी एक मिनट, प्रदीप जी आपने कोई फिगर बोला अभी। जी जी हाँ। संजय ठाकुर साहब आप भी सुनिए जरा ध्यान से, फारूकी साहब आप भी सुनिए, क्या क्या फिगर बोला आपने सर? 2500 और 2,500 करोड़ रुपए 32 लाख फार्मर्स के लिए। 32 लाख फार्मर्स। जी हाँ, यानी सबके हाथ में आए 781 रुपए, 781 रुपीज पर फार्मर। सर क्या बनेगा उससे? अब आप बताइए शाहजहां अख्तर जी, यहां पे मैं एक और सवाल है जो आपसे पूछना चाह रहा हूं। सर जो रिलीफ आएगा या जो रिलीफ मिल रहा है या जो मिला है, पता नहीं मिला है कि नहीं अभी तक, वो सिर्फ उन्हीं किसानों के लिए है जिनकी खुद की जमीन है, जो फार्म वर्कर्स हैं उनका क्या, जो पट्टे पे काम करते थे उनको कुछ मिलेगा? शाहजहां साहब अरे आप पीछे कहां चले गए? ये शाहजहां पीछे कहां चले गए यार? फारूकी नहीं, साहब, एक सेकंड, आ रहे वापस आ रहे, कोई फिगर लेके आ रहे होंगे शायद शाहजहां साहब। हाँ वो आए, पेपर लेके आ रहे हैं शायद वो। हाँ बोलिए सर, बोलिए शाहजहां जी, मराठी में बोला। जी बोलिए ना सर। मैंने आपको बोला कि ये रिलीफ जो है सरकार की तरफ से, ये सिर्फ जो अपनी जमीन के मालिक हैं उनको मिल रहा है या जो पट्टे पे काम करते हैं उनको भी मिल रहा है? शाहजहां साहब कैसा है देखिए सर, स्थानिक जो किसान है वो हर किसान को कोई मुआवजा नहीं मिलता है, ये स्थिति है। जो भी देखा जाए, जो स्थानिक लोकल का पुड़ारी होता है वो उसको सिर्फ मिलता है। अपने लोगों के नाम Correct. देता है Correct. और विरोधी पक्ष के नाम नहीं देता, मगर ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। I agree with you. Sir, before I go to Faruqi साहब, I would like to ask Sanjay Thakur this question. Sanjay Thakur साहब, very important. ये जो शाहजहां अख्तर साहब ने जो बात करी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पुडारी होता है लोकल, वो नाम देता है कि इस बंदे को रिलीफ चाहिए, और वो सबके नाम नहीं देता है। देखिए आज तुम देखो, आज वो लाडली बहना के पैसे जो मजदूर है उनको नहीं मिलते, जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, उनको मिलते हैं। ये कैसा होता वो है? गलती हो गई, वो सुधार कर रहे हैं उसमें। अतर साहब मुझे शाहजहां बेटे मुझे जरा बात करने दीजिए ना, संजय ठाकुर से बात करने दीजिए। संजय ठाकुर साहब आप जरा बताएं इसके बारे में, जो लोकल पुडारी है या जो लोकल सरपंच है, ही गिव्स द नेम्स। नाउ द प्रॉब्लम इज ही मे नॉट गिव ऑल द नेम्स। हाउ डू वी इंश्योर दैट सर? यही देवेंद्र बोलिए फडणवीस ना। कितने दूर तक, ठीक है, कितने शाहजहां दूर अख्तर तक साहब आप सोच जाना के चाहते काम हैं? करते हैं, आपके इसी प्रश्न में उसका उत्तर निहित है। जी इसीलिए वो कह रहे हैं कि जिसको नुकसान हुआ है फोटो खींचो और भेजो। ऐसा हो सकता है कि जिनकी फोटो गई पुडारी ने उनका नाम ना दिया हो। ये हमारे और आप जैसे लोग हैं जो हर गांव में सरपंच बन के बैठे हैं, अपने लोगों को आगे करेंगे, जरूरतमंद लोगों को पीछे करेंगे, तो सरकार इसमें क्या मापदंड सर्वे करने में बहुत समय लगेगा। देवेंद्र फडणवीस जी जो कर रहे हैं, ये आप आ गए मान, वो बहुत दूर तक सोच रहे हैं जहां तक ये लोग सोच नहीं पा रहे हैं। लोकल पुडारी, गांव का सरपंच अपने लोगों का नाम देगा, दूसरे लोगों का नाम नहीं देगा, दूसरे लोग अपना फोटो खींच के अपनी छती का वो फोटो भेजेंगे, तो उनको वहां पता चलेगा कि भाई ये नाम तो भेजा नहीं सरपंच ने, लेकिन इनका भी नुकसान हुआ। ये वजह है कि वो डायरेक्ट एक्सेस दे रहे हैं लोगों को कि जितना लोग डायरेक्ट अपना भेज सकते हो उतने लोग भेजो। Are you sure, sir? Sir, are you sure, Sanjay Thakur sahab? Because I am not sure about this at all. Because if this is happening, this is very good. But I am not sure at all. Because what is happening is a set of names is sent from every village. हर गांव से और हर डिस्ट्रिक्ट से एक नाम जाते हैं, उसके हिसाब से आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है। सर दैट इज द वे द रिलीफ सिस्टम वर्क्स। नाउ द प्रॉब्लम इज ऑल द ब्यूरोक्रेट्स, आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं अभी, मैं ठीक है मैं मानता हूं,
The point is, this is something which is for you as well as for Asif Faruqi sir. Sir, the Congress government was made to fail by all the bureaucrats. Let me tell you this very frankly. मैं लिख के आपको दे रहा हूँ और उन bureaucrats के नाम भी दे देता हूँ मैं आपको. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. I have been sued over 84 times. I had 116 cases against me. I don't know how many there are now. आजकल तो मैं कोर्ट भी नहीं जाता हूँ. वकील अपने आप निपटा लेते हैं. मैं आपसे बोल रहा हूँ सर, ऑल द ब्यूरोक्रेट जितने भी हैं आपके, आप उन पे कड़ी नजर रखिए सर. एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम. संजय ठाकुर साहब, नाम किसका खराब होने वाला है? देवेंद्र फडणवीस का. नाम किसका खराब होने वाला है? एकनाथ शिंदे का. नाम किसका खराब होने वाला है? अजीत दादा पवार का. किसी को मालूम नहीं पड़ेगा कि फ्लड रिलीफ या रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री में कौन सा वो आदमी है जिसने गड़बड़ करी है. वो मालूम पड़ेगा 10 साल के बाद. संजय ठाकुर साहब, द होल सोवियत यूनियन वॉज डिस्ट्रॉयड बाय ब्यूरोक्रेट्स. डोंट लेट दैट हैपन हियर. संजय ठाकुर साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए बजाज साहब, ऐसा है कि आपने जिन 3 नेताओं का नाम लिया है जी, ये 3 के तीनों नेता निहायत अनुभवी हैं, फील्ड में रहने वाले नेता हैं, घर में बैठ के काम करने वाले नेता नहीं है, और ये जानते हैं कि किस तरह से आपदा के समय में निपटा जाता है और कैसे कैसे बदमाशियां होती है. बिल्कुल इस तरह के प्रयास किए जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको इतना जरूर यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस तरह का प्रयास जो करने की कोशिश करेंगे उनसे बहुत सख्ती से निपटा जाएगा, वो बख्शे नहीं जाएंगे. आसिफ फारूकी साहब, हम लोगों का खून पी के लोगों की कीमत पे राजनीति न करते हैं और न करने देंगे. राइट सर. आसिफ फारूकी साहब, इस सरकार का आंकड़ा है कि 321 योजना सरकार चला रहा है. 321 योजना, और सबको अपने अकाउंट में डीबीटी जाता है. सबको अपने अकाउंट में 100% पैसा अपने अकाउंट में पहुंचता है. ये रिकॉर्ड है. और ये रिकॉर्ड जब कंपेयर करते हैं राजीव गांधी के टाइम पे, जब कहते हैं कि 100 रुपया में 90 सिस्टम में डूब जाता है, 10 रुपया पहुंचते हैं. ये पहली बार है 321 योजना के डीबीटी डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में जा रहा है. फिर भी आपको डाउट है कि लोगों को पैसा नहीं मिलता है. अब इतने आसान कर दिया कि जहां भी आपके लिंक्ड मोबाइल है, डीबीटी लिंक्ड मोबाइल से आप फोटो भेज दो, आपको पैसा डायरेक्टली मिलेगा. फिर भी वहां पर शंका क्यों है फारूकी साहब? सर ये फिगर जो है सरकार दे रही है और आप दे रहे हैं. ये एक्चुअल फिगर नहीं है. इन्होंने जो प्रॉमिसेस किए थे आज तक इन्होंने पूरे नहीं किए हैं. इन्होंने फार्म लोन कहा था कि माफ करने के लिए फार्मर्स का, आज तक इन्होंने माफ नहीं किया है. और आज बैठे हम लोग दुनिया भर की बातें कर रहे हैं कि उनको 2,500 करोड़ दे दिया है और यूँ पहुँच जाएगा, क्यों पहुँच जाएगा. सर ये टेक्नोलॉजी वाले दौर में जहाँ हम ये पूरे देश का इतना बड़ा इलेक्शन करवा लेते हैं, जो और चोरी करना है चोरी करके जीत जाते हैं, और नहीं चोरी करना है तो भी मालूम है, सारे डेटा मालूम है, और उसके बावजूद अगर हम लोग अपने पैसे नहीं सही टाइम पे और सही लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं तो इसमें उनकी गलती नहीं है, गवर्नमेंट के अंदर कहीं ना कहीं कमी है सर. अब इस वक्त तो हमारे सर पे पानी ऊंचा हो रहा है और हमको डिजास्टर मैनेजमेंट की तो जिस तरीके से भी मुमकिन हो, आज वो जैसे इस वक्त भाई साहब ने कहा कि इंटरनेट का तकलीफ हो जाएगी, एक किसान बिजली नहीं है, जाएगा, वो सब चार्ज कहाँ से करेंगे, फोन चार्ज कहाँ से करेंगे, बिजली नहीं है. जी बोलिए. हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर इंटरनेट चलता तो मेरे ख्याल से मोदी जी डायरेक्ट वो फ्लड वाले से बात करके टीवी पे ब्रॉडकास्ट कर देते, उनको थोड़े वोट मिल जाते. तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये सब की कमी है. इस वक्त हम लोगों को इन सब बातों से दूर रह के मेरे ख्याल से जितने अफेक्टेड गांव हैं उनके एक एक किसानों के पहली बात तो फौरन उनके लोन माफ कर देना चाहिए, फौरन, चाहे वो 2,000 करोड़ या 20,000 करोड़. सर पैसे नहीं मालूम है तो गांव हमको तो मालूम है कि कौन से गांव इफेक्टेड है. उसके बाद उस गांव के जो डायरेक्ट अफेक्टेड लोग हैं उन तक हम लोगों को मदद देनी चाहिए. वो जिस तरीके से भी हो, चाहे सड़क के ज़रिए जा रही है सड़क के ज़रिए जाए, वो बीजेपी गवर्नमेंट लेके जाए, या हम अपने तौर पे पर्सनल लेवल पे कांग्रेस भी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं. कल MRCC में भी ये बात चल रही थी कि कुछ फंड कलेक्ट करके हमको फ़ौरन करना चाहिए, और मेरे ख्याल से आज एक वक्त जाने वाला था. तो इस किस्म की ये हमारे लिटिल रिसोर्सेज है. लेकिन जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, और वो भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जिसका रेवेन्यू बहुत बड़ा है पूरे इंडिया नंबर वन इन द कंट्री. जी करेक्ट. और उसके फार्मर परेशान रहे सर, 13-14 आत्महत्याएं करते हैं बेचारे.
ये पिछला कई सर सालों वो से अलग इशू हो जाएगा सर। आसिफ फारूकी साहब वो अलग इशू हो जाएगा, वो विषय but फारूकी साहब- वन सेकंड Yes, प्रदीप जी, वो विषय सर उसके बारे में एक अलग से शो करेंगे। संजय ठाकुर साहब आप जो बोल रहे हैं मुझे मालूम है, वो विषय इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, इवन दो अब शाहजहां, संजय ठाकुर साहब आई बोले थे रिस्पेक्ट कि शाहजहां। फार्मर के साथ कांग्रेस ने नहीं किया। सर मुझको तो लगा पिछले साल में जिस तरीके से फार्मर्स के ऊपर अत्याचार हुआ, जितने मर गए ठंडी के अंदर, उनको आपने दिल्ली आने नहीं दिया। आई रिमेम्बर मैं कॉलेज में था, राजीव जी प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त भी फार्मर्स ने बहुत बड़ा एक एजुटेशन किया दिग्विजय था। सिंह आपके दोस्त हैं, गोलियां चलवाया है मध्य प्रदेश में उन्होंने फार्मर। नहीं सर, आपने गलत आप बात बड़े कही है, करीब हैं क्योंकि दिग्विजय सिंह उस के। वक्त राजीव दिग्विजय जी सिंह ने प्राइम गोलियां मिनिस्टर चलवाई थे, हैं फार्मर्स उन्होंने पे। वेलकम किया, वो जाके इंदिरा पानी गांधी ने पिलाया इस उन्होंने, देश और के उनकी संतों पर जितनी बातें थी मान ली, किसानों पर गोलियां लेकिन चलवाई आज हैं। तक मोदी गवर्नमेंट ने उनको आपको दिल्ली नैतिक तक आने अधिकार नहीं दिया। नहीं है ये सब बातें उसमें करने कोविड का। हो गया, पता उसमें नहीं सर्दी में कैसे मर बड़ी गए, बेशर्मी से आप लोग और इस तरह की आपने बातों को कर फार्मर्स रहे थे। की एक बात बहुत नहीं दुखद सुनी, है। आपने कह तो रहा हूँ महाराष्ट्र आप दिग्विजय सिंह के में बहुत पहले करीबी हैं। आपने दिग्विजय सिंह से लोन पूछिएगा माफ करने की कि बात क्यों कही मध्य थी, आज प्रदेश तक में भी इस आपने देश माफ के किया किसानों है पर सर। गोलियां सर लोन माफ करने से कुछ नहीं होगा मैं लिख के दे देता हूँ लेके जा रहे हैं सर, मैं इस पे 25 साल से काम कर रहा हूँ। देश के किसानों पर गोलियां चलवाते हैं संजय ठाकुर जो साहब, लोग किसानों का सर एक दमन चीज करते भूल हैं, गए आप, उनको नैतिक अधिकार नहीं। सर एक चीज भूल गए आप, सर आपने एक चीज नंगे भूल गए। किसानों को मार दिया। पहली बार फारूकी साहब सुनने वाली बात है, दिस इज नॉट विद रिगार्ड टू दिस इशू, बट फॉर द फर्स्ट टाइम सर ड्यूरिंग पंडित नेहरू टाइम मिजोरम पे इंडियन एयरफोर्स वाज यूज्ड, इंडियन एयरफोर्स वाज यूज्ड टू बॉम्ब आइजॉल। लिख के दे रहा हूं मैं आपको सर, छोड़िए उसमें मत जाइए संजय ठाकुर साहब, वो छोड़िए। अब अगर आप जितना पीछे देखेंगे, जितने आप गड़े मुर्दे उठाएंगे और बात आएगी, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। मैं आज की बात कर रहा हूं, और आज क्या हुआ, एक और चीज हुई है, आई डोंट वांट टू मिस दैट बिकॉज वी मोर और लेस कम टू द एंड ऑफ द शो। सर ले में भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस पे अटैक हुआ है। द ऑफिस ऑफ द बीजेपी हैज बीन बर्न्ड इन ले बिकॉज सोनम वांगचुक साहब जो हैं वो फास्ट पे बैठे हैं। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी सरकार ने जो जो वादे किए थे आर्टिकल 370 के रिपील के बाद, जब उन्होंने टोटली सपोर्ट किया था रिपील ऑफ आर्टिकल 370, वो लद्दाख के साथ सर यू हैव नॉट kept your word. संजय ठाकुर साहब, you have not given complete statehood, you have not given so many things to Ladakh. Sir, please, why would such an innovator, such a great man like Sonam Wangchuk, who was a total supporter of Mr. Modi, let me tell you this, मोदी जी और अमित शाह जी की उन्होंने जितनी तारीफ करी ना जब आर्टिकल 370 रिपील हुआ, वो सुनने लायक है सर। बट व्हाई वुड दिस हैपन सर? वो देखिए वो आग लग रही है, वो बीजेपी का ऑफिस है सर, वो जल रहा है झोली में। नहीं आने दिया सर उसको। संजय ठाकुर साहब बोलिए ना प्लीज। हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट ने दिल्ली नहीं आने दिया सर उसको। साहब ऐसा है बजाज साहब कि हमारे इनोसेंट लीडर्स वो प्रोटेस्ट करते हैं, इस देश में चल रहा होता है, लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि एनआरसी करिए। इतने ज्यादा इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, इतने ज्यादा टूल किट काम कर रहे हैं कि सर ये हमारे टूल किट का लोगों काम के, नहीं है। इनोसेंट लोगों के हाईजैक कर लिए जाते हैं उनके। You are absolutely right. I agree with you. I agree with you. But this is not toolkit. ये टूलकिट वाला काम नहीं है। मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं सर। यहाँ पर you really will have to look at this with a lot of sympathy. संजय ठाकुर साहब please, sir look at it with a lot of understanding sir. अपना दिल बड़ा रखिए सर please. That's all I'm saying. हम सबका देश है सर प्लीज। और इन्फिल्ट्रेटर आएंगे तो कहां से आएंगे, किस जगह से आएंगे? पीओ कैसे आएंगे ना, वो पीओ के भी तो अपना ही है ना सर, क्या है उसमें? बट लद्दाख जैसे लद्दाख स्टेटहुड मांग रहा, यू नो ठाकुर साहब, बात ठीक है, लद्दाख भी अपना ही है, बांग्लादेश भी अपना अपना है, अभी बांग्लादेश इतना अपना नहीं है। नहीं बांग्लादेश गया सर जब पहला पार्टीशन हुआ था बंगाल का, सर जब पहला पार्टीशन बंगाल का हुआ था तब बांग्लादेश गया, तब उसको भूल जाइए सर। बट पीओ के अपना है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, अपने आप आएगा। गिलगिट बाल्टिस्तान भी अपने आप आएगा सर। और वहां के सब लोग टच में हैं, वो बोलते हैं कि मोदी जी क्यों नहीं हमें वहां साथ में ले रहे, हम तो वेट कर रहे हैं कब लोगे यार। और बलूचिस्तान भी अपना है, माय पेरेंट्स कम फ्रॉम देयर, मेरी पूरी फैमिली क्वेटा की है सर, वहां से आते हैं हम लोग, दरबारी सेठ, रूसी करांजिया, हम सब लोग क्वेटा के हैं सर। मैं आपको फिर बता रहा हूं, वो सब लोग बोलते हैं जब खान ऑफ कलाट ने नेहरू जी को चिट्ठी लिखी कि भाई बलूचिस्तान वांट्स टू जॉइन द इंडियन यूनियन, नेहरू जी ने मना कर दिया। नेपाल ने जब बोला, नेपाल के किंग वीरेंद्र के पिताजी ने बोला कि भाई वी वुड लाइक टू जॉइन द इंडियन यूनियन, पंडित जी ने मना कर दिया। अब सर क्या करें, अब उसके बारे में जाना नहीं चाहते, पंडित जी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था उस वक्त, लेकिन फिर भी
अब वक्त आ गया है सर, उसके बाद ठाकुर साहब, ये पहली बार है कश्मीर के रेजिडेंट्स बाहर आके अगेंस्ट टेररिज्म सड़कों पर आए, दंगे पर सड़कों पर स्लोगन चलकर प्रोटेस्ट करने लगे। नाउ दिस इज हाई टाइम। अभी उमर अब्दुल्ला हो चाहे लद्दाख में हो, दे आर आस्किंग फॉर स्टेटहुड. That is something that government has to think about very fast, because development, they're happy with the development, they're happy with the tourism, they're happy with infrastructure, they're happy with rail lines and आपने जो किया वहाँ पर, but statehood is something that is affecting them, and both Umar Abdullah, everybody wants statehood immediately. That's a big problem. In your hands, ठाकुर साहब। ये तो एक सुखद पहलू है, ये एक सुखद पहलू है। भारत की नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अथक प्रयत्नों से जितना पॉजिटिव काम किया था उन्होंने, जो रिफॉर्म्स लाए, जो चेंजेस किए, आज ये उसके परिणाम दिख रहे हैं। और लोगों को डेवलपमेंट में भी फर्क समझ में आ रहा है वहाँ, कि जिनको अपना समझते थे उनके हाथों में हालात थे तो कैसे थे, और आज जिनको उनको पराया बताया गया उनके हाथों में हालात हैं तो स्थितियां कैसी हैं, फर्क लोगों को समझ में आ गया ना। तो ये तो होना ही है सर। आज मालूम है आपको क्या हुआ है, और इसलिए आप सब लोग बधाई की पात्र हैं सर। ये तो ले की बात हो गई, लेकिन आपको मालूम है आज क्या हुआ? आप सबको बता दूं, आज तीसरा दिन है नवरात्रि का। श्रीनगर में पता नहीं कितने सालों के बाद माता का जो मंदिर है ना ऊपर, वो कौन सा मंदिर है, मुझे हमेशा मैं नाम भूल जाता हूँ उसका। आई हैव रिटन अबाउट इट आल्सो। नहीं, माँ शारदा का नहीं, वो शारदा देवी, शारदा पीठ आगे ये, दिस इज शाकरा देवी ऐसा कुछ है। यहाँ पे खीर भवानी बोलते हैं उसको। हाँ, खीर भवानी बोलते हैं सर। पहली बार इतने सालों के बाद जय भवानी, जय माता दी, श्रीनगर की सड़कों पे। आप कैन यू बिलीव इट? कैन यू बिलीव दिस सर? संजय ठाकुर साहब, क्या बात है सर, मान गए। चलिए, आई होप इट कंटिन्यूज। लेकिन हम लोग तो यही सपना देखते थे बजाज साहब। चलिए, आपका सपना साकार हो गया। अब शोलापुर के किसानों का सपना कब साकार होगा ये आपके ऊपर है, सीधी सादी बात है। अब हाउ यू प्रेजेंट दिस टू सर, नहीं होगा। महाराष्ट्र की सरकार आई होप इट सरकार। जी बोलिए। महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र में एक संजीदा नेतृत्व है और बहुत ही संजीदगी से इस पर काम हो रहा है। और निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों बहनों को, सोलापुर के हमारे लोगों को निश्चित तौर पे अच्छी मदद मिलेगी, अच्छी मदद पहुंचेगी, इस बात का मुझे पूरा वंडरफुल सर, वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू ऑल थ्री ऑफ यू। शाहजहां असर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, ऑलवेज ए प्लेजर। संजय ठाकुर साहब, नमस्कार। नमस्कार। आसिफ फारूकी साहब, आपको भी नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार। That was nice, and really nice to have Sanjay Thakur and actually Shahjahan Asar. It was a very nice show. I mean, we really talked about the flood situation in Maharashtra. लेकिन सर, शाहजहां असर जी ने जो रिपोर्टिंग करी वहाँ से, जो जिस तरीके से उन्होंने बताया, माशाल्लाह, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। 150 years 150 साल में इतनी बारिश नहीं हुई इतनी जोर से, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। और संजय ठाकुर साहब की भी बात ठीक है, 1 साल से प्रणति शिंदे वहाँ पर हैं, उनको कुछ करना चाहिए था, वो क्या करेंगी। शी ऑल्सो डिडंट नो कि इतनी जबरदस्त बारिश आ जाएगी वहाँ पे। बट ऑल्सो मिस्टर आसिफ फारूकी वाज वेरी वेरी पॉजिटिव। आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट ही वुड बी सो पॉजिटिव। Most of the time we find that he speaks balance. And in a very balanced way, in a very fair way. Let's be very very clear. But the fact remains that farmers need relief right now. सर, आपने फ़ोन के ऊपर भी भेज दिया, आपका फ़ोन आधार कार्ड से लिंक्ड है, आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड है, बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, सबसे पहले बैंक ये करेगा कि उसका इंटरेस्ट निकाल लेगा, आपको कुछ नहीं बचेगा। सीधी सादी बात है। सो फॉर दैट Mr. Devendra Fadnavis will have to come out with a new GR with the help of Mr. Amit Shah, because all the cooperative banks come under him, as far as I know. Is that right? He's also cooperative minister, Mr. Amit Shah. तो वो एक बार अगर एक GR निकलवा देते हैं या सेंटर की तरफ से एक स्टेटमेंट भेज देते हैं कि भाई ये जो पैसा आ रहा है इसको आप टच नहीं करेंगे. So I hope the banks obey that, because the banks are also a law unto themselves, as you know, in this country. But the fact remains, people need relief right now. आज चाहिए उनको। नवरात्रि का टाइम है, मुझे नहीं लगता कि शोलापुर, कोल्हापुर और उसके आसपास के जितने इलाके हैं वहाँ पर कोई आज नवरात्रि बना रहा होगा, और बना भी रहा होगा तो बेचारा मतलब हालत खराब होगा। Because all the houses, and not only that, sir, what has happened even in Calcutta, by the way, Kolkata में जो the biggest hospital over there, the base hospital in Calcutta, the army hospital, which is the biggest hospital made by the British, for the first time it is underwater. Even that is underwater. All the OPD, all the patient wards, everything is underwater. We saw heavy floods everywhere. I mean, when you talked a few days before, Punjab affected. Never before जिस प्रकार से आज affected है. अलग-अलग areas or states में जिस प्रकार से the flooding situation is there. It's very
something. I mean, there's So we very must, little government. the whole country must come, Prashasana. the whole country must come together and figure out exactly why this flooding is taking place. Why is it that the water is not able to find its way out? And in fact, this is a warning for all of us. It's a wake-up call for all of us in Mumbai. Salt pans के ऊपर अगर आप बिल्डिंग बना देंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है आदरणीय सामान्य अडानी जी को, वहाँ पर सॉल्ट पैंस पे बिल्डिंग्स बनाने के लिए, we'll face the same situation right here in Mumbai, sir. Because that is the floodplain, that is where the water drains out. मुंबई में जितनी बारिश होती है सर, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़बरदस्त बारिश होती है. आज की तारीख में फील नहीं होती क्योंकि आपके सॉल्ट पैंस हैं आसपास. वो पानी अगर बाहर नहीं निकलेगा, मुंबई जो है वहाँ से लेकर के ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक, यहाँ तक के एयरपोर्ट तक पूरी की पूरी पानी से भर जाएगी. No, but one case study is where we are exactly. This was a salt pan land. This was a salt pan land. You got a Mithi river beside, and they have built an entire township here, commercial center, Yes. one of the financial centers of the country. Few years back, there was heavy rains and there was flooding. But now, somehow, it's a case study ki why that flooding is not the same level as it was earlier. Perhaps because maybe the stormwater drains, etc., have been cleaned by Exactly. Mr. Bhushan Gangrani, Yes. and maybe he has built new ones, and maybe So we need to he has actually cleared study. he has cleared the way to the sea. Yes, So, yes, yes. So we need to study that. I mean, because Kurla was always flooded. I mean, you can't Always. always. पहली बार हुआ है कि कुर्ला में पानी नहीं हो रहा है. Yes, पहली बार हुआ. and I we agree didn't with hear much. भले थोड़ा पानी था, but it is not so much like No, other hardly, years. hardly. This is not something where the traffic has come to a standstill, where cars don't move, Yes, where you yes. just stand over there and you can't do anything. But in any event, as far as Solapur is concerned, it's in a very bad state. So is the rest of Maharashtra, and the amount you have given up till now, 2,500 crores, उसका कुछ नहीं होने वाला साहब. क्या होने वाला है उसका? अब आप जरा थोड़ा काम करें उस पे. That's all that one can hope for. And as far as the situation in Ladakh is concerned, what are they asking for really? They are only asking for statehood. आप statehood दीजिए ना लद्दाख को, क्यों नहीं दे रहे? मतलब सीधी सादी बात है. ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर को आपने यूनियन टेरिटरी बना के रखना है जब तक कि टेररिज्म वहाँ पे खत्म नहीं होता, लेकिन लद्दाख को तो आप स्टेटहुड दे सकते हैं. ऐसी क्या बात है? Well, that's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें. प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. The fastest growing channel of the nation, Nation Now. And please do send in your comments. आपके क्या comments हैं? Please आप ज़रूर भेजें. Especially with regard to the flood situation all over the country and in Maharashtra and in Solapur, which we talked about. Plus, do you think Ladakh should get statehood? लद्दाख को क्या statehood मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, इस विषय के ऊपर भी अगर आप अपनी कोई राय प्रकट करना चाहते हैं, please ज़रूर भेजें. That's it from both Pradeep ji and myself and the entire team of Nation Now. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. भारत माता की जय. जय हिंद. Jai Hind.